ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু সার্চ টু রিসার্চ। পশ্চিমবঙ্গের বুকে গবেষক ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যার্থে আমরা কয়েকজন গবেষক মিলে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছি যার নাম সার্চ টু রিসার্চ। আমাদের মূল উদ্দেশ্য এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যারা এমএ পাস করার পর রিসার্চের দিকে এগোচ্ছে, এই এমএ থেকে রিসার্চের মধ্যে যে গ্যাপটা থাকে, অর্থাৎ বুঝে উঠতে পারে না যে সেমিস্টারের এই যে বাধাগণ্ডি পেরিয়ে আমি কি করে গবেষণা করব, সেই গবেষণার যে বড় ক্ষেত্র সেখানে যাতে প্রবেশটা অনেক সহজ হয়, সে কারণেই আমাদের এই ভাবনা চিন্তা। এবং সেই ভাবনা চিন্তার এই মেলবন্ধন ঘটাতে আমরা বরাবর যাদের শরণাপন্ন হই তারা হচ্ছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, আমাদের আচার্য, পরম বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের শরণাপন্ন হই এবং নিজেরাও শিখি এবং অন্যদেরকেও আমরা শিখতে সাহায্য করি এই সার্চ টু রিসার্চ এই অনুষ্ঠান দিয়ে। মূলত এটা অনলাইনে আমরা কন্ডাক্ট করি এবং প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন গবেষকরা এই উপকার পাচ্ছে আমাদের এই অনুষ্ঠানটির মধ্যে দিয়ে। সেরকম ভাবেই আজকে আমরা 3 নক্ষত্রকে পেয়ে গেছি আমাদের মধ্যে, আমাদের আজকের এই সন্ধ্যায়। এবং আজকে আমরা মূলত যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে সোম অন দা বেসিস অফ ভেদিক লিটারেচার। সোমা, এটা নিয়ে আমরা মেনলি আলোচনা করব। এবং আজকে আমাদের সেই আলোচনায় আমাদের সঙ্গে আছেন শ্রদ্ধেয় প্রফেসর সোমদেব শতাংশু মহাশয়। তাকে আমি বিএসএসসি এর পক্ষ থেকে আমি সার্চ টু রিসার্চের এই প্ল্যাটফর্মে তাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। এবং আজকে চিফ গেস্ট হিসাবে আমাদের সঙ্গে আমরা পেয়ে গেছি প্রফেসর পার্থ প্রতিম দাস মহাশয়কে। তাকেও আমি সার্চ টু রিসার্চ এই প্ল্যাটফর্মের তরফ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। এবং পেয়ে গেছি স্পেশাল গেস্ট হিসাবে আমাদের সকলের পরিচিত ডক্টর মীনা কুমারী ম্যাডামকে। তো আজকে এই 3 নক্ষত্রের মধ্যে আমরা আর বেশি সময় নষ্ট করব না। সার্চ টু রিসার্চের আজকের এই পর্বের একদম প্রথমেই আমি মীনা কুমারী ম্যাডামকে অনুরোধ করব একটি ভজনের মাধ্যমে আজকের এই সন্ধ্যার এই সত্রটি শুরু করার জন্য। মীনা ম্যাডাম। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम इस संगोष्ठी के स्पीकर ऑनरेबल वाइस चांसलर गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी हरिद्वार और मुख्य अतिथि प्रोफेसर एंड फॉर्मर हेड डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत बर्दवान यूनिवर्सिटी, दोनों को हमारा बहुत बहुत प्रणाम। और इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार और शुभ संध्या। मैं एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, तो प्यारा। प्यार से प्यार के पिटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया दीप दया जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दिन दुखे, राह में आए जो दिन दुखे, सबको गले से गाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। धन्यवाद। मीना कुमारी মহাশয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এই সন্ধ্যাটাকে আরো মনোমুগ্ধ করে তোলার জন্য। তো এখন আমরা আমাদের আজকের পর্বের একদম প্রাথমিক যে স্বাগত ভাষণ সেই পর্বে যাব, এবং স্বাগত ভাষণের জন্য আমি সুমনা মণ্ডলকে অনুরোধ করব আজকের স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্য। সুমনা সম্পূর্ণ সংস্কৃত ভাষাতে স্বাগত ভাষণ দেবেন। সুমনা। नमस्कार। इयमहं सुमना मण्डलः सर्वेषां शोधछात्र-छात्राणां पक्षतः उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः सुधीजनेभ्यः विद्वद्भ्यः विदुषीभ्यश्च अन्याभ्यश्च शोधछात्रेभ्यः छात्रेभ्यश्च हार्दं सुस्वागतं कार्तज्ञं प्रणमं च विनिवेदयामि। अद्य अस्माकं सत्रस्य विषयः भवति वैदिकसाहित्येषु सोमम् आधारीकृत्य वयम् आगामिषु दिवसेषु किं शोधकार्यं कर्तुं शक्नुमः। अद्य अस्माकं सत्रे मूलवक्तारूपेण उपस्थितः अस्ति श्रद्धेयः अध्यापकः डॉक्टर सोमदेव शतांशुः, उपाचार्यः गुरुकुलकाङ्ग्री समविश्वविद्यालयः हरिद्वारम् उत्तराखण्डः। महाभागस्य विषये सम्पूर्णभारतवर्षे संस्कृतवाङ्मये च नास्ति किञ्चित् अविदितं, तथापि स्वागतभाषणस्य औपचारिकनियमेन संक्षेपेण किञ्चित् उच्यते। महाभागः चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालयतः स्वस्नातकोत्तरकक्षां समापितवान्। तत् एव वेदेषु समतत्त्वस्य विषये विद्यावारिधि इति उपाधिं च आप। दिल्ली विश्वविद्यालयतः महाभागेन विशिष्टाचार्येति उपाधिः प्राप्ता। प्रायः 35 वर्षं यावत् महाभागः अध्यापकरूपेण निरन्तरेण संस्कृतमातुः सेवायां निरन्तरः अस्ति।
सप्तसु पर्यायेषु महाभागेन गुरुकुल काङ्गड़ी विश्वविद्यालये वैदिक शोधकेन्द्रे ज्योतिर्विज्ञान संकाये च विभागाध्यक्षस्य पदं परिचालितवान्। तस्य इष्टतमं क्षेत्रं भवति वेदः व्याकरणं च। प्रायः त्रयोविंशति छात्राः तस्य समीपे शोधकार्यं कृतवन्तः। प्रायः 49 प्रविधेषु विषयेषु तस्य लेखाः, ग्रन्थाः, निबन्धाः सन्ति। गुरुकुलपत्रिकायाः सम्पादनकार्यमपि महामतिना सम्यक् परिचाल्यते। इह खलु अस्माभिः सह अद्वत्वे उपस्थिताः सन्ति बङ्गप्रदेशस्य संस्कृतसाहित्यमूर्धन्य तथा अद्यतनसत्रस्य प्रमुखातिथिः श्रद्धेयः अध्यापकः पार्थप्रतिमदासः, वरिष्ठाध्यापकः संस्कृतविभागः वर्धमान विश्वविद्यालयः। बङ्गदेशे संस्कृतभाषायाः अभ्युत्थाने नवजागरणे च तस्य अनेकानि कार्याणि प्रसिद्धानि। 2015 वर्षे महाभागेन पश्चिमबङ्गे ऑल बेंगल संस्कृत लवर्स एसोसिएशन नामिकायाः संस्थायाः उद्घाटनं कृतम्। संस्कृतस्य प्रचारस्य प्रसाराय च एषा संस्था अग्रगामिनी। केवलम् इदं हि न, दुर्गतपीडितानां सेवायै अपि एषा संस्था बहुविधान् कार्यक्रमान् परिचालयति। अद्यावधि महाभागस्य 12 ग्रन्थाः प्रकाशिताः, प्रायः 40 गवेषणापत्राणि च प्रकाशितानि। प्रायः 22 छात्राः महाभागस्य समीपे शोधकार्यं समर्पितवन्तः। यूनिवर्सिटी ऑफ बुदापेस्ट मध्ये अपि महाभागः शोधसम्पर्कितानि कार्यक्रमाणि परिचालितवन्तः। अतिथि अध्यापकरूपेण उपायनद्वयं च लब्धम्। तस्मै महामतये सत्रागमनाय कोटिशः धन्यवादः। अस्माभिः सत्र विशिष्टातिथिरूपेण अस्ति अस्मदीय आचार्या श्रद्धेया अध्यापिका डॉक्टर मीना कुमारी महाभागा, संस्कृत विभागस्य प्रधान विभागीया SSLNT वुमेन्स कॉलेज धनबाद, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालयस्य धनबादस्थस्य अध्यापिका। महाभागः पठनपाठनम्, अभिरुचिः इत्यादिकं सर्वं साहित्ये व्याकरणे च इष्टतमं विषयं भवति व्याकरणम्। धनबाद प्रदेशे अपि च झारखण्डेति राज्ये संस्कृतभाषायाः नवजागरणे शास्त्रीयसङ्गीतस्य चर्चायां च अस्याः विद्याकबरीभारभ्रमर्याः योगदानं वाग्देवतायाः हस्तशोभितां विनामेव चकास्ति। प्रायः 10 स्थानेषु महाभागा स्वस्य शोधपत्राणि उपस्थापितवती। प्रविधेषु विषयेषु तस्य अनेके ग्रन्थाः, शोधपत्राणि च प्रकाशिताः। प्रायः बहूनां शोधछात्राणां मार्गप्रदेशिकारूपेणापि तन्मण्डले सा ख्यातिम् आगात्। सत्रस्य प्रारम्भे या सुरलहरी तया उपस्थिता तस्यै भूय भूय धन्यवादः। श्रोतृभ्यः अनुरोधः, आन्तं यावत् तिष्ठतु, अस्याः संगोष्ठ्याश्च लाभमपि उत्थापयन्तु। नमो नमः। সুমনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সকলের পরিচয়ের সাথে সাথে তাদের সম্পর্কে আমাদের জানতে সাহায্য করলেন সমস্ত শ্রোতৃবৃন্দকে। তো এখন আমি আমাদের সকলের পরিচিত শ্রদ্ধেয় পার্থপ্রতিম স্যারকে অনুরোধ করব আজকে উদ্বোধনী ভাষণের মধ্যে দিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠানের মূল পর্বের শুরু করার জন্য। স্যার। Thank you very much, Amit. Thank you very much, Sumona. Thank you very much, Dr. Meena Kumari Madam. And thank you very much, sir, Honorable Vice Chancellor, Professor Somdev Shatangshu, sir. What a important national seminar you are going to organize now. And I'm extremely happy
and proud that you have invited me to say some words in front of such a galaxy of scholars and brilliant students, not to say the least. The topic is extremely important in modern perspectives. Shomo, or the Jews of Shomo, how a research on Shomo Jews can be conducted in modern times, how the process of research should be undertaken in a subject which involves so many sub-parameters. For example, research methodology, psychology, ethnobotanic sciences, and archaeology. So all these unique research areas have actually combined to be able to do such kind of a research on Shomo. It is not only a Sanskritic research, it is an ethnobotanic research, heavily depending on archaeological evidences and ancient Indian texts. But the main problem that we encounter today with the research of Shomo is that it is still a mystery as to what exactly was the plant. Shomo as a deity, Shoma as a Jews, Shomoros, Shomo as a plant, and Shomo as a cultural heritage. All these combine to make this research a very difficult one indeed. And it still remains a mystery as to why and how the Vedic people have emphasized Soma and how they have sustained the Soma culture for such a long period of time, for more than 2000 years. But the main problem that I was talking about a few minutes earlier is that it's still a mystery. It's still a mystery. But there are a lot of researches being conducted now. Very recently, two of the very important researches have been conducted, one by a Russian archaeologists, a team of Russian archaeologists, and secondly, by a composite team comprising of different experts belonging to different countries. So I'll refer to two very important researches that have been made on the Shoma culture of the ancient world, particularly ancient Indian history. But I'm not saying that they have succeeded much. Unfortunately, they have taken a course which has followed a beaten path. So it has, to a great extent, failed. But I would emphasize that such researches are going on, though without much success. And here comes the importance of scholars like Professor Shatanshu and others who would come forward to show the pathway as to how research should be done, at least in this area. I'll mention a few of the hypotheses that have been taken by the Russian experts and the composite experts. The Russian experts who have conducted the research in the Mongolian region, Mongolia, where they would like to identify Shomo plant to be a divine mushroom, So they believe that Shomo was actually a mushroom, which is definitely not correct, because mushroom doesn't have any leaf. But it is clearly stated in the Vedic literature that Shomo plants have leaves. So mushroom cannot be accepted as Shomo plant. That is what I believe. But the importance of the research conducted by the Russian archaeologists is that they have somehow connected divine mushroom, what they called divine mushroom, to a Shomo cultural tradition.
it is believed by the Mongolian people that they had inherited a culture which was once an Indian culture, and they had practiced that culture on the basis of a product that had been derived from a Mongolian mushroom, which can be called a divine mushroom, according to them. So the significance is that though divine mushroom was not the Somo plant that was practiced by the Vedic Indians, but it has actually inherited the culture of Soma that had been practiced by the ancient Indian people. That is number one. But I've already stated that it is a wrong thing. It's a wrong identification. Mushroom cannot be identified with Soma at all. Secondly, I'll say that a team of composite composite team comprising of various scholars representing different countries, Germany, Australia, Canada, Finland, Italy, such a brilliant team have also conducted a research on Soma, but once again, I'm sorry to say that they have failed miserably. But research is still on. I'm not saying that they have completely failed. The research is on, but they have tried to identify a botanical plant, ethnobotanical plant rather, ephedra by name, which is a narcotic drug. But was Somo a narcotic drug? Definitely not. But the composite experts, the scholars belonging to the composite team, have tried to identify ephedra to be exactly the Somo plant that has been referred to in the Vedic literature. But that is definitely not so, because ephedra is a narcotic drug. It's a hallucinative drug. It is a psychoactive substance derived from ephedra. But the main point that I'd like to stress upon is that we cannot take Somo to be only a narcotic, hallucinative, psychoactive drug by which our body can be revitalized. It is a matter of research as to how, quote unquote, psychoactive substance like Soma, quote unquote, psychoactive substance became a ritual, bringing about a sort of a ritualistic spirituality. That is the problem not yet solved so far. Actually, the foreign historians have baffled and got confused with how can a sacrifice last for 1,000 years, 1,000-year-long Somo sacrifice. They didn't just understand it. They have taken the term 1,000 literally. That's why they have faltered. They couldn't understand it. Normally, it lasted for 12 years. But they talked about 100-year yajna or sacrifice as well. But that is a different issue. I'll not get into that problem because I believe Professor Shatangshu will definitely touch upon that. But it is not a narcotic drug. The whole world is pointing to the Somo culture of India to be a narcotic culture, a hallucinative culture, where people used to take drugs. But the point they forget that narcotic drugs often lead to depression and violence. I'm asking those foreign scholars whether you have actually seen any incident that are derived from consuming Somo juice or Somo culture, and that has actually driven them to violence. Can you cite a single instance from the Vedic literature that by absorbing or consuming Somo culture, Somo juice, one is depressed, one has lost his health, one is full of diseases, one is violent, both psychologically and physically? No. So ephedra cannot be the Somo.
we should always remember that in the Atharva Veda, I'll give you the reference. It is mentioned in the 11th Kando, 11.6.15, that there are 5 great plants, and Somo is the best. Atharva Veda, according to Atharva Veda. The other 4 were barley, marijuana, dorvo, and kusko. But Somo is the best. So that is the point. When you distinctly differ Somo from other narcotic and hallucinative drugs, how can you insist on saying that Somo is a narcotic drug? It is actually not so. And I'd like to refer to Professor David Frawley's research on that, who definitely said, who has come very close to truth. I mean, close to truth. If it's not entirely true, it must be close to truth, that Somo was not a single plant at all. Somo was a species. Different people in different regions have taken Somo to be a different plant that suits their convenience. So Vedic people have treated one kind of Somo, maybe the primary Somo, to be their juice, to be their cultural source, while the Iranians, the Persians have taken Hauma, they call it Hauma, Soma, to be a slightly different from what the Vedic Indians have followed. And these Somo plants can also be found in different other regions. For example, Gangetic region, for instance, Himalayan region, for instance, even in Europe, it can be found. But that doesn't mean that the Vedic Indians come from Europe. Because Somo plant can also be found in Gangetic region. But it was a rare plant. It is not a plant which can be grown anywhere in the world, particularly in tropical countries like us. It is not easy. It requires some specific environment to grow such plant. It was a rare plant, but that does not mean it will grow only in Europe. So those people have actually brought Somo from Europe to India, and while they didn't find the Somo, Somo plant in India, they lamented over it. It is absolutely rubbish. So I'll say that David Frawley, Professor David Frawley, was extremely, right in his conclusion or hypothesis, I'd say, that Somo was actually a commonwealth of plants. On the top of it remains the Somo plant, which is still unidentified. And Rig Veda, I'll refer to a particular verse of Rig Veda, 10.97.7, 10th mandala, 97th 7, where Somo is mentioned as existing in all plants. That is a remarkable statement. Somo is mentioned as existing in all plants. So it is the essence. It is an essence like soul in the body. And many different types of Somo are indicated in that mantra. Kindly note that mantra, Mandala 10, 97th Sukta, verse number 7. And water also itself was sometimes called Somo. So Somo is not only a juice, not only a deity, not only a plant, but also the soul of our culture. And that's all I have for you. I'll not go into much details of it because I'm not a speaker here. I'm supposed only to introduce the entire lecture that's to be given by such eminent scholar as Professor Somdev Shatangshu. So I'll sign up now, restrict now from stating, though I'm just getting instigated to say a few words on that, but definitely I'll not do so because Professor Shatangshu is all set to deliver a wonderful lecture in front of you. Thank you very much. I hope you will all enjoy Professor Somdev Shatangshu's lecture. Sir.
मुझे प्रारंभ करना है? हाँ सर, शुरू करें सर। प्रणाम सर, अच्छा। शुरू करें। नमस्ते। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम अपामसोमम् अमृता अभोम अगन्मज्योतिरभिधाम देवान् किं नो नमस्मान् कृणवत् अरातिः किम धूर्तिरमृतं मर्त्यस्य। अस्मिन् कार्यक्रमे बंग स्वर्णभूमेः बंगभूमेः संस्कृत समुपासकाः सुधीः विद्वांसः शोधछात्राः अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथयः येषां वैदुष्यजुष्टं व्याख्यानम् इदानीम् अस्माभिः श्रुतं प्रोफेसर पार्थ प्रतिमदास वर्धमान विश्वविद्यालयस्य अध्यक्षचराः विशिष्ट अतिथिरूपेण विराजमाना सम्मान्य मीना कुमारी महोदयाः विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालयस्य प्राध्यापिका अन्यच्च अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः प्रोफेसर मान्य अमित महोदयाः सम्मान्य सुमना महोदय यया विदुषां स्वागतम् अभिहितम्। अस्य कार्यक्रमस्य सूत्रधारः डॉक्टर श्री अनंत मुखर्जी महोदय येषां संयोगेन अहम् अस्मिन् शोभनतमे कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां साक्षात् दर्शनं भवतां दर्शनं च अनुभवामि। अहं सर्वान् अपि सादरं प्रणमामि। येऽपि छात्राः संस्कृतज्ञाः अस्मिन् कार्यक्रमे अन्तर्जालमाध्यमेन संगताः सन्ति तेषां भूरि सह अहं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। मया श्रुतं बंगभूमेः रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालयस्य वरिष्ठ प्राध्यापकाः सम्मान्य नवनारायण बंद्योपाध्याय महोदयाः सम्मान्य प्रोफेसर तारकनाथ अधिकारी महोदयाः वेदस्य वरिष्ठतमः विद्वांसरूपेण बंगभूमौ विराजन्ते। अहम् एतेषामपि सर्वेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। प्रोफेसर पार्थ प्रतिमदास महोदयेन मम कृते बहु सरलतमः सरणी समुपस्थापिता सोमस्य परिचयं प्रदत्त्वा सोम विषये याः भ्रान्तयः सन्ति ये इदानीं विचाराः सन्ति सोम विषयकाः तेषां विषये संक्षिप्तं विवरणं प्रस्तुतवान्। एतदर्थम् अहं सम्मान्य दास महोदयाय भूरिशः धन्यवादान् विज्ञापयामि। अहं मन्ये संस्कृत भाषायां सर्वेषां यदि सुकरं न स्यात् हिंदी भाषाम् अवगन्तुं सर्वे सारल्येन प्रभवन्ति। हिंदी भाषायां भवेत् वा? महोदय किञ्चित् किञ्चित् हिंदी भाषया किञ्चित् किञ्चित् स्थानीय संस्कृतभाषया अपि वक्तुं शक्यते भवता। अस्तु शोभनं। हिंदी भाषां तु अवगच्छन्ति मन्ये सर्वे? प्रायः अवगच्छन्ति सर्वे। अहं बङ्गभाषाम् अवगच्छामि परं वक्तुं न शक्नोमि अन्यथा अहमपि बङ्गभाषायां वदे। शोभनं। मया एकः मन्त्रः ऋग्वेदीयः उच्चारितः अपाम सोमम् अमृता अभूम अस्माभिर्सोमरसः पीतः अमृता अभूम वयम् अमृतत्वं प्राप्तवन्तः अपाम सोमम् अमृता अभूम अगन्म ज्योतिर् दिव्य ज्योतिः दिव्यं ज्योतिः अस्माभिरधिगतम् अपाम सोम अमृता अभूम अगन्म ज्योतिरभिधाम देवान् दिव्यतत्त्वान् प्राप्तवन्तः किं नो नमस्मात् कृणवत् अरातिः। अरातिः येऽपि शत्रवः सन्ति राक्षसप्रवृत्तकाः जनाः सन्ति ते अस्माकं किमपि अपाकर्तुं किमपि विकर्तुं न शक्नुवन्ति। किमुधूर्तिरमृतं मर्त्यस्य अहम् अमृतस्वरूपः एते मर्त्यभूताः मम किमपि विनाशं मम किमपि विकृतिं जनयितुं न प्रभवन्ति। अयं ऋग्वेदीयः मंत्रस्य भावः वर्तते। सोमः सोम क्या है क्या नहीं है अभी डॉक्टर साहब ने बहुत सरलतया प्रतिपादित कर दिया। देखिए इस विषय में सबसे जो महत्वपूर्ण रिसर्च माना जाता है और डॉक्टर आरजी वासन की पुस्तक है द डिवाइन मशरूम ऑफ इमॉर्टलिटी।
बहुत पहले मैंने इस पुस्तक को पढ़ा था। तो जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे, वो एक मशरूम के रूप में प्रतिपादित कर रहे हैं, और करीब 24-25 पौधे हैं जिनको लोग सोम के नाम से जानते हैं। जैसे डॉक्टर अभी एफेड्रा जेरेडियाना इत्यादि की बात कर रहे थे, कई लोग किसको मानते हैं किसको मानते हैं। मैं एक ऋग्वेद का मंत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। याते धामानि, सोम के विषय में कहा जा रहा है, सोम विषय उच्यते। याते धामानि दिवि या पृथिव्याम या पर्वतेषु ओषधीषु, एतेन मंत्रेण एतत् सुतरां स्पष्टं भवति। सोमस्य धामानि स्थानानि कुत्र सन्ति? दिवि, दिवलोके, पृथिव्यां, पृथिवी, पर्वतेषु, ओषधीषु, विविध ओषधीषु, अप्सु, जलेषु। अन्यच्च सोमः पवते मतीनां, सोमः पवते मतीनां जनिता पृथिव्यः, जनिता दिवो, जनिताग्निर्जनिता द्यौः। इस सोमः मतीनां जनिता वर्तते, न तो मतिभ्रंशकः वर्तते। यदि सोम कोई नशीला पदार्थ होता और मति को उत्पन्न नहीं करता। जनिता दिवो, द्युलोकस्य जनिता वर्तते, जनिता दिवो जनिता अग्निर्जनिता वर्तते। जनिता पृथिव्याः, पृथ्वी के भी जन्मदात्री, जन्मदाता है, जन्म प्रदाता है। तो ये सब ऐसे तत्व हैं। और एक सबसे बड़ी भ्रांति, मैं जब किसी से सोमरस की चर्चा करता हूँ, लोग कहते हैं आप सोमरस की चर्चा क्या कर रहे हो, तो आगे हमारे साथ बैठ जाओ, शाम को सोमरस का पता लग जाएगा। ये सोम सुराह जैसी कोई भी नशीली पदार्थ नहीं था, इसमें तो हम लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण का वचन है, प्रजापतिर्वा द्वे अंधसी, प्रजापतिर्वा द्वे अंधसी, सोमश्च सुराच। प्रजापति के दो अन्न हैं, सोम और सुरा। सोम का क्या स्वरूप है? सत्यं यशः श्री सोम, सत्यं यशः श्री सोम, अनृतम तमः पाप्मा सुरा। सत्य, यश, श्री, ये सोम के रूप हैं। सोम पीने से जीवन में सत्य, यश और श्री की प्राप्ति होती है। और सुरा का जो रूप है, शराब का जो रूप है, वो अनृत, अनृत माने झूठ, मिथ्या, तमः अज्ञान, अंधकार, पाप्मा पाप, दुर्बुद्धि, ये सुरा के रूप हैं। तो ये द्विवचन का तो संस्कृत द्विवचनस्य किं महत्वं भवति वयं स्वयं विद्मः। द्वे अंधसी एतेन एतत् नूतनां स्पष्टि भवति कि सोमः सुरा नास्ति, सुरा वा सोम नास्ति, एतो उभो भिन्नो द्रव्यो वर्तते, भिन्ने द्रव्य वर्तते। तो सोम और सुरा निश्चित रूप से दो पृथक वस्तु हैं, इसमें किसी प्रकार का दो राय नहीं। मैंने इसका बहुत अध्ययन करने का प्रयास किया, इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं। संक्षेप में बताऊं कि सोम किसी एक लता विशेष भौतिक पदार्थ नहीं है, ये तो सुनिश्चित है। माने लता विशेष ही नहीं, लता विशेष सोम एक लता नाम का था, इसमें कोई संदेह नहीं है, जिसका आयुर्वेद में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। लेकिन लता ही है ऐसा नहीं है। तो सोम का जो व्यापक स्वरूप, ऋग्वेद का पूरा नवम मंडल, आपका सामवेद का पवमान कांड, यजुर्वेद के जो सोम याग के मंत्र हैं उन सबको, अथर्ववेद के मंत्रों को, पूरे ब्राह्मण साहित्य के जो सोम याग से संबंधित हैं, सतपथ ब्राह्मण के तृतीय कांड से लेकर आगे तक का जो सोम याग का विधान करते हैं, इन सब चीजों के अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि जो एक संसार व्यापी तत्व है, जिसका प्रमुख स्थान द्युलोक में है, अंतरिक्ष में चंद्रमा के रूप में है, पृथ्वी में सोम आदि विभिन्न पदार्थों के रूप में है, सोमलता आदि, और अंत में कहा कि सर्वम वै सोम, सब कुछ सोम है। हमारा जो वैदिक सिद्धांत है, हम लोग मानते हैं अग्निसोमात्मकम जगत, इदम संपूर्णमपि जगत अग्निसोमात्मकम वर्तते, अग्निसोमाभ्याम इदम सर्वम सृष्टम वर्तते। आधुनिक वैज्ञानिकाः इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इति द्रव्यत्रयेण सृष्टेः उत्पत्तिं, सृष्टेः संरचनां वा प्रतिपादयन्ति। परम इतोपि सूक्ष्मतरं विज्ञानं वैदिक साहित्यस्य वर्तते। अग्निः सोमः सोमाभ्यां च संपूर्णमपि एतत् कृत्स्नं जगत् निर्मितम् इति अस्माकं वैदिक सिद्धान्तः वर्तते। एवं माने प्रस्तावना रूपेण वक्तुं शक्यते कि वैदिक वाङ्मय में एक वनस्पति के विशेष में, जैसे वनस्पति ही जो लोग ये प्रतिपादित करते हैं, दास जी, सोमम मन्यते पविवान, ये ऋग्वेद का मंत्र है। सोमम मन्यते पविवान यत् संपिंसत्यौषधिम, सोमम यम ब्राह्मणोर्विदो न तत् अस्नाति पार्थिव।
कि जो लोग सोमलता को कूट पीस करके समझ लेते कि मैंने सोमरस पान कर लिया, ते वस्तुतः सोमस्य वास्तविकं तत्त्वं न विदन्ति न जानन्ति। सोमम यम ब्राह्मणो विदु ब्रह्मवेत्तारः ब्राह्मणाः ब्रह्मज्ञानिनः यम सोमम विदन्ति प्राप्नुवन्ति वा स सोमः भिन्न एव वर्तते। सोमम यम ब्राह्मणो विदो न तद अस्नाति पार्थिवः। कश्चित् पार्थिवः इत्युक्ते पार्थिव वस्तु रूपेण सोमलता रूपम औषधम यह सेवते तदेव सोमलतात्वेन मन्यते स ब्रह्मज्ञानं वास्तविकं सोमतत्त्वम् अधिगन्तुं पातुं वा न शक्नोति। तो एतेन नूनं स्पष्ट भवति कि वेदज्ञाः ब्राह्मणाः कं सोमतत्त्वं जानन्ति। तो यद् आध्यात्मिकं सोम शब्दस्य अर्थः परमात्मा देवता विशेषः वर्तते, स सोमः एव वस्तुतः सोम वर्तते यस्य आनंदेन यस्य भक्तिरसेन नितराम अपि जीवनम् आनंदमयं भवति। यं लब्ध्वा पूर्णानंदं मोक्षं वा अस्माभिर्जनैः ब्रह्मज्ञैः प्राप्तुं शक्यते। तो सोम पूरे व्यापक साहित्य को देख करके भौतिक दृष्टि से यह सोमलता है, औषधि विशेष है, स्वयं अभिसवे अभिसुत सार पदार्थ है, रस है। सोम वर्ण वे सोम, अन्न सोम है, पयः सोम है, दूध सोम है, दधि घृत मधु जल वायु ज्योति श्री आज्य चंद्रमा वृत्र विष्णु प्राण वीर्य ओज विद्वान वीर योद्धा आनंद आत्मा प्रजापति आदि विविध अर्थों का वाचक है। तो सोम का जो उत्कृष्ट रूप है वह द्युलोक में है, एक दिव्य ऊर्जा के रूप में है, जिससे अग्नि की उत्पत्ति हो रही, पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही है, समस्त औषधियों की उत्पत्ति हो रही है, और सूर्य किरण माध्यम से चंद्रमा के माध्यम से उस सोम का अवतरण संसार की पृथ्वी में जो सोमलता आदि औषधियां हैं उन औषधियों में उन सोम का अवतरण होता है। हम लोग सोए अभिसवे धातु से सोम, सोए सुप्राणा प्रसवाश्वर्यो सुप्राणिगर्भ विमोचने सुप्रेरणे ये इत्यादि धातु से सूयते इति सोमः, ऐसा हम लोग अर्थ कर सकते हैं, क्योंकि उणादिक मनिन प्रत्यय इसमें। तो सुनोति यह सोम, सूयते यह स सोम, सुनोति ये न स सोम इत्यादि अर्थ कर सकते हैं। और इसके सोम शब्द का आचार्य यास्क, हम लोग यास्क तो जानते हैं, वेद के शब्दों के अर्थ जानना हो तो यास्क के शरण में जाना पड़ेगा। तो लिखते हैं औषधि ही सोम, स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि औषधि विशेष सोम है। और सुनोतेर यद एनम अभिशृण्वन्ति, निरुक्तकार ने इसकी ये व्याख्या की है। तो इससे तो लता विशेष का ही प्रतिपादन होता है, लेकिन फिर वो बहुलकम नैघुंटुकम वृत्तम आश्चर्यमिव प्राधान्येन कहकर कि सोम को उन्होंने सोम औषधि, सोम चंद्रमा, सोम सूर्य, सोम आत्मा भी ये अर्थ निरुक्तकार करते हैं। तो इससे तो निश्चित स्पष्ट हो गया कोई एक अर्थ विशेष नहीं है, सोम का एक व्यापक स्वरूप है। तो इसको हम सहजता समझने के लिए इसके आधिभौतिक रूप, आधिदैविक रूप, आध्यात्मिक रूप से वर्गीकृत करके इस चीज को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत सारे अर्थ सोम के दिए गए हैं। कई लोग उसको अर्थवाद भी कहते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं अनंता वै वेदा, वेद जो है अनंत है। अनंत कैसे हो सकते हैं? अनंत तभी हो सकते हैं तो ये जो शाम अथर्व के जितने भी मंत्र हैं उसके आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, ये जब तीन प्रकार करके या सभी शब्दों को हम व्युत्पन्न मानते हैं, वेद के शब्दों को, उनके व्युत्पत्ति के आधार पर, अभिशवन के आधार पर, प्रसव के आधार पर, ऐश्वर्य आदि जो अर्थ हैं, इन धातुओं के जो भी जहां जहां भी अभिशवन हो, किसी भी असारभूत तत्व से सारभूत वस्तु का निर्माण हो, उसको हम लोग सोम कह सकते हैं। जैसे एक हमारे बहुत बड़े विद्वान है, मान लीजिए किसी अनुपयोगी की लकड़ी पड़ी है, उस लकड़ी को तराश करके उसने कोई सुंदर सा वस्तु के रूप में निर्मित कर दिया, तो वो भी और लकड़ी का अभिशवन करके एक सुंदर वस्तु का निर्माण करके उसकी उपयोगी वस्तु का निर्माण, उसका उस लकड़ी का भी वह अभिशवन सार वस्तु का निर्माण कहा जा सकता है। मैं ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर जो सोम के अर्थ दिए हैं बहुत सारे, पर्ण कहते हैं पलाश को, पलाश को भी सोम माना गया है। और पलाश एक दिव्यौषधि है। बहुत सारे आयुर्वेद के ग्रंथों में देखेंगे
जो एक दो तरह के पलाश होता है, आपने देखा होगा, जो एक तो वृक्ष वाला पलाश, पलाश जानते हैं ना, पलाश संस्कृत में भी पलाश ही बोलते हैं उसको, पर एक लता वाला पलाश वृक्ष होता है। तो लता का जो पलाश वृक्ष का पर्णपत्र है, उसकी उत्पत्ति भी सोम से मानी गई है। कि और कहाँ एक उस कथा की ओर बाद में आऊंगा मैं, जब स्वर्गलोक से सेन के द्वारा सोम का आहरण हो रहा था, जो अमृत कलश लाने के बाद पुराणों में जिसका जिस रूप में वर्णन किया गया, उस सोम रस के बिंदु जहां जहां पड़े वहां से पर्ण और विभिन्न सोमादि औषधियों की उत्पत्ति हुई, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णन उपलब्ध होता है। सोम वै इंदु, चंद्रमा को भी सोम कहा गया। ज्योति सोम, श्रीर वै सोम, सोम राजा, वृत्रो वै सोम, यह विष्णु स सोम। ये सरल शब्द हैं इसलिए मैं इनकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। वायु सोम, सोम पयः, पयः तुग्धम, आपः सोम, देवो वै सोम, सत्यम श्री ज्योति सोम, अभी इसकी चर्चा कर ही चुके हम लोग। सोमो वै पलाश, पलाश वृक्ष को भी सोम कहा गया है। सोमो वै दधि, प्राणः सोम, रेतः सोम, पुमान वै सोम, स्त्री सुरा, इस तरह से तैतरीय ब्राह्मण में मिलता है। औषधि ही सोम, सोम सर्वा देवता, और अंत में कह दिया सतपथ ब्राह्मण में सर्वम ही सोम, सब कुछ सोम ही सोम है। तो इतना एक व्यापक स्वरूप जिस सोम का है, तो हम लोग किसी एक पदार्थ विशेष में उसकी एक अर्थ निहित कर दें तो ये बहुत वेद के साथ अत्याचार होगा। जैसा कि हमारे पुराण शास्त्रकार कहते हैं, विभेद तल्प श्रुताद वेदो मामयम प्रहरिष्यति, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंघयेत। अल्पश्रुतात, कम पढ़े लिखे व्यक्ति से वेद डरता है। क्यों डरता है? कि मामयम प्रहरिष्यति, ये तो मेरा हनन कर देगा। तो ये जो कोई उसको एक मशरूम में रूप में कह रहे हैं, फिर कोई एफिड्रा जराडियाना के रूप में प्रतिपादित कर रहे हैं, और जो जिसने वासंग ने जो पुस्तक लिखे, आरजी वासंग ने, मशरूम के रूप में, तो एक प्रमाण को पकड़ के लेके रह गए। उसमें सोम के लिए सहस्त्र वल्श शब्द है। सहस्त्र वल्श शब्द का मतलब हुआ कि जिसमें 1000 शाखाएं हों, 1000 शाखाएं, सहस्त्र शाखा, सहस्त्र वल्श। तो आप लोगों ने देखा होगा जो मशरूम होता है, मशरूम नीचे धारी 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 वो सब होते हैं, तो उसको शाखा मान के उसको उन्होंने सहस्त्र वल्श करके और सोमैचे इंस्टोकेटिंग माने नशीला पदार्थ के रूप में उसको चित्रित कर दिया। और नशीला पदार्थ हम उसको कहते हैं कि बुद्धिम लुम्पति यद्रव्यम मदकारी तदुच्यते, यद्रव्यम बुद्धिम लुम्पति बुद्धिम विनाशयति तद्रव्यम मदकारी मद इत्येन सुरा इत्येन उच्यते। और सोम क्या है? सोम पी करके अपाम सोमा अमृता अभूम, हमने सोम रस पान किया, अमृत हो गए, ये वर्णन उपलब्ध होता है। तो ये सहस्त्र वल्श, मशरूम इत्यादि तो कभी भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इसका जो थोड़ा आधि भौतिक पक्ष है जिसको हम सरलतया समझ सकते हैं, तो औषधि रूप जो सोम है, तो उस सोम की थोड़ी चर्चा करते हैं। तो उसमें पवमान कांड का जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, पवमान दिवस पर्यंतरिक्षात शिक्षत पृथिव्या अधिसानवि, अधिसानवि पृथ्वी के शिखरों पर, जैसे सोमस्येव मौजवतस्य भक्ष, हमारे उसमें हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं जो अक्षय सूक्त में, तो उसमें मुंजवान पर्वत हिमालय के देश में उसकी उत्पत्ति मानी गई है। और आयुर्वेद के ग्रंथों में देखते हैं सह्याद्री, श्री पर्वत, अपना कुरुक्षेत्र का एक ऊपर अंचल है, उन सब जगहों में सोम की उत्पत्ति की बात कही गई है। सोम वनस्पति उत्पत्ति विषयक जो आख्यायिका है, मैंने चर्चा की आपको कि जब द्युलोक से सोम का आहरण हो रहा था सेन के द्वारा, गरुड़ के द्वारा, तो जहां सोम नीचे गिरा वहां से सोमलता की उत्पत्ति हुई। और सोम जो वनस्पति है, आयुर्वेद में जो वर्णन मिलता है अनेक प्रकार की सोम, वहां पर 5-7 प्रकार की सोम का वर्णन है। तो उसमें जो मुख्य रूप से सोम है उसका जो वर्णन है कि उसमें चंद्रमा की कला के अनुसार, चंद्रमा की कला के अनुसार उसमें, जैसे आज मान लीजिए चतुर्दशी है,
अमावस्या है तो उसमें एक पत्ता होगा, अमावस्या के दिन कोई पत्ते नहीं होंगे। जैसे जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की वृद्धि होगी तैसे प्रतिपदा में एक पत्र, द्वितीया में 2, तृतीया में 3, चतुर्थी में 4, पूर्णिमा को 15 पत्ते, इस तरह का वर्णन प्राप्त होता है। इसको कई लोग, हमारे विद्वान लोग, आलंकारिक भी वर्णन मान लेते हैं, क्योंकि सोम चंद्रमा का अर्थ भी सोम चंद्रमा, तो चंद्रमा की कलाओं का ये आलंकारिक वर्णन कह करके चंद्रमा को सोम के पक्ष मानते हैं। मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा एक सत्य घटना, जो आप लोग गीता प्रेस गोरखपुर की जो कल्याण पत्रिका है निश्चित पढ़ते होंगे। तो उस समय एक घटना मैं अवश्य सुनाना चाहूंगा आप लोगों को। तो कोई सन्यासियों का दल बद्रीनाथ की यात्रा में थी। तो बद्रीनाथ एक उसमें बुजुर्ग सन्यासी थे, रास्ते में कहीं शौच वौच के लिए बैठ गए, उनका दल आगे निकल गया। तो रास्ते में जहां शौच के लिए बैठे हैं, सामने एक बानर एक किसी वृक्ष लता का वो पत्ता तोड़ तोड़ के खा रहा है। और जैसे ही एक पत्ता तोड़ के खाता है, दूसरा पत्ता जैसे तोड़ता है, फिर दूसरा पत्ता, फिर दूसरा पत्ता। तो सन्यासी थे, उनको भी कुछ जिज्ञासा हुई, ये कौन से अद्भुत वनस्पति की पत्ता तोड़ते हैं, नया पत्ता आ रहा है। और जब शौचादि से निवृत्त हो गए तो वो भी उस पत्ते को, उस लता के पत्तों को तोड़ तोड़ के अपना लोटा भर लिया और उसको धो धा करके पीस करके पी गई। पीने के बाद वो थोड़ी देर बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। तो एक साधु जंगल में, वो भी 60 वर्ष के साधु को कौन उठाता, लेकिन कोई वैद्य उस रास्ते से गुजरा और उन साधुओं के सारे लक्षण देख करके, अरे उनको पता लग गया कि इसने तो कोई दिव्य चीज पी हुई है, उठा के अपने आश्रम में ले गए। मेरी बात सुन पा रहे हैं ना आप सब लोग? हाँ सर, हाँ सर। ठीक, तो आश्रम में ले गए। तो जैसे अपने आयुर्वेद में कायकल्प प्रसंग वर्णन है, आप सब लोगों ने सुन रखा होगा उसको। तो कायकल्प में जैसे वो कायकल्प के लिए जो औषधियां प्रयुक्त होते हैं, उनके पीने से शरीर के बाल, फिर चर्म, मांस, ये सब धीरे धीरे उधड़ने लगते हैं। फिर नया मांस, नया चमड़ा, नए बाल होते हैं। तो इस तरह से 1-2 महीना उनकी उन्होंने सेवा की। सारा शरीर का जो मांस था, चमड़ा था, धीरे धीरे उधड़ करके गिरने लगा, नया मांस, नया चमड़ा। फिर वो 60 वर्ष के जो सन्यासी थे 20 वर्ष के नवयुवक जैसे हो गए। ये कल्याण पत्रिका में मिथ्या घटना नहीं प्रकाशित होती, जब मैं विश्वास करता हूँ। और इसलिए विश्वास करना पड़ेगा कि आयुर्वेद में इस तरह का वर्णन है कि सोमरस के पान से शरीर का कायाकल्प हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आयुर्वेद में और भी ऐसे बहुत सारी औषधियां हैं जिनके प्रयोग से कायाकल्प का प्रयोग हमारे यहाँ होता रहा है। अब सद्य घटना जो लेटेस्ट है, अपने मदन मोहन मालवीय जी थे, हम लोगों ने उनका नाम सुना है, अस्माभिः तस्य नाम श्रुतम् अस्ति। मालवीय महोदयेन अपि कुटि प्रवेशेक विधिना सोमरसस्तु तदानीं सुलभ न आसीत्, परम आयुर्वेदस्य यद् किं कज्जली भवति एक पारदस्य संयोगः, तस्य सेवनं तेन कृतं कुटिप्रवेशक विधिना। तो तदानीं तस्य पुनः दृष्टिशक्ति पुनर्निवृत्ता, केशः कृष्णीभूतः आसन्, बलि फलितमादिकं सर्वं तस्य निर्गतम् आसीत्, नूतना दन्तपक्ति अपि तस्य निर्गता, एवं जनाः कथयन्ति कि उनके नए दांत, दृष्टि शक्ति झुर्रियां गायब हो गई, बाल काले हो गए, केवल जो कज्जली उसका पारद का एक संयोग था उसके सेवन करने से ये हुआ। तो ये असंभव चीजें नहीं है, ऐसा संभव है। तो जहां तक सोमलता के विषय में है, तो सोमलता तो इतना सुनिश्चित है कि सोमलता नाम के कोई लता विशेष थी और वह इस तरह से अमृतत्व कायकल्प प्रदान करने वाला था। एक घटना और मैं सुनाना चाहूंगा। मैं महर्षि महेश योगी के साथ भी कुछ साल रहा। तो बालराज महर्षि उस समय महर्षि आयुर्वेद के डायरेक्टर थे। तो मैंने उनसे प्रश्न किया, ये सोम क्या ऐसा था नहीं जैसे कि आयुर्वेद में वर्णन है कि सोम रस के पीने से इतने 100 वर्ष की आयु हो जाती है, सारे ज्ञान स्वतः उपस्थित हो जाते हैं, शस्त्र आदि से भी उसका भेदन नहीं किया जा सकता। मैंने कहा ये अतिशयोक्ति मात्र है, वास्तविकता है? उन्होंने कहा नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सोमरस के पीने से निश्चित रूप से बुद्धि में ऐसी क्षमताएं आ जाती हैं। और उन्होंने जो बात कही कि मुझे भी मेरे गुरुजी ने सोम लता का एक पत्ता पिलाया था
और उस समय जो उनकी आयु लगभग 77 वर्ष और बिल्कुल स्वस्थ देदीप्यमान चेहरा और पूरा आयुर्वेद उनको उपस्थित, ऐसा उनको मैंने देखा है। अब सोमलता के नाम से कौन से पत्ते का उन्होंने सेवन किया ये अभिज्ञात है। जहां तक ब्राह्मण ग्रंथों के देखने से पता लगता है कि ब्राह्मण ग्रंथों में भी उस समय सोम के अभाव में प्रतिनिधि, सोमयाग में सोम के अभाव में प्रतिनिधि व्यवस्था की गई है। प्रतिनिधि व्यवस्था माने सोमा भावे क्या है, और पुतिक, पुतिक के अभाव में फिर अर्जुन, अर्जुन के अभाव में दुर्वा, श्वेतो दुर्वा, ये प्रतीक व्यवस्था की गई है। आज भी आप लोगों को ध्यान होगा, अस्माकं गृहादिषु यदा किमपि कर्मकांडम भवति पूजाति कर्मकांडम तदा अस्माभिर दुर्वा पूजायां दुर्वा प्रयुज्यन्ते। तो दुर्वा तस्य एव सोमस्य प्रतिनिधि रूपेण अद्यापि अस्माकं गृहेषु प्रयुज्यते, पूजादि कर्मसु प्रयुज्यते। दुर्वापि अद्भुत औषधि वर्तते। कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुषः परुषस्परि एवानुदुर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च एतं मंत्रं पंडितः पंडितैर्विनियुज्यते। तो दुर्वा तृणे अपि अद्भुत दिव्य शक्तिर्वर्तते, अनेकान् रोगान् दुर्वा विनाशयति। मम अस्मिन् औषधि विषये यावत् चर्चा विहिता, तो अद्यत्वे एषः सोमो औषधि तो दुष्प्राप्यः वर्तते। अस्य स्थाने या अमृता अमृता अमृतावल्ली किमुच्यते, गिलोय भवन्तः जानन्ति मन्ये, गिलोय गुडुचि, संस्कृते गुडुचि उच्यते। तो सोमलतायाः अभावे गुडुच्यः अपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। गुडुचि औषधे अपि अनेके गुणाः वर्तन्ते, यस्य प्रयोगेण शरीरं सुस्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं च वयं प्राप्तुं शक्नुमः। तो सोम वनस्पति विषय, औषधि विषय, तो लता विशेषे तो इदम एव मतं प्रायेण जनैः प्राप्यते। अस्मिन् प्रसंगे या मया क्षम्यताम् किम एतेर आधुनिक शोधकर्तृभिर यह वनस्पति, ये वनस्पतयः सोमत्वेन मन्यन्ते तेषां नामानि अहम् एकवारं श्रावयामि। रूटा ग्रेवियलेंस, लीन, सार्कोस्टामा, बेड्रिक्स्टिग्मा परिवार, ये सब जो भी पाश्चात्य विद्वान हैं इन सब ने इनको माना हुआ है। सार्कोस्टेमा बीमालिनिया, ये सार्कोस्टेमा एस्क्लिपियाडा और मदार कुल का ही है। सार्कोस्टेमा इंटरमीडियम डेक्ने, एफेड्रा फेग्डिलाडा, एफेड्रा जेरेडियाना और एफेड्रा सिमिका स्टाफ, एफेड्रा डिस्टाचालिन, एफेड्रा जाति के बहुत सारे 5-6 पौधे हैं। और सीरोपिजिया जुनासिया, ये भी मदार कुल का पौधा है। सीरोपिजी या डेक्सास, पेरिप्लोका अफायल्ला डेक्ने, काक्लुस हिसिस्टुस, ये जल जमीनी, जल जमनी बोलते हैं जिससे जल जम जाता है। सिटारियस इत्यादि लगभग ये कितने पौधे हैं, 29 पौधे हैं जिनको लोगों ने सोम के रूप में सिद्ध करने का प्रयास किया। मेरे पास बहुत सारे सोम संबंधी चित्र भी हैं, मैं जल्दीबाजी में आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो जो अनेक पौराणिक स्थलों पे उनके चित्र या द्रोण, कलश आदि सोम अभिषेक के जो पात्र मिले हैं, उन सब के आधार पर कहीं चित्रित हैं ये सोम के संबंध में ये सारी मान्यता है। और अंतिम जो अपने जिनसेंग है या गिनसेंग जिसको बोलते हैं चाइनीज लोग, इसको भी सोमलता के प्रतिनिधि के रूप में मानते हैं। लेकिन ये जितने भी रिसर्च हैं निश्चित रूप से ये सब अधूरे कल्पना मात्र हैं, क्योंकि जैसा कि आयुर्वेद में जो लक्षण, हम लोग तो चरक सुश्रुत को प्रामाणिक मानते हैं, चरक सुश्रुत में भी जो सोमलता का वर्णन मिलता है वो सब इनसे कहीं भी दूर दूर तक इनकी समानता किसी प्रकार का नहीं है। तो निश्चित रूप से सोम एक दिव्य औषधि थी
जैसा कि आयुर्वेद में वर्णन है, जिसके पीने से व्यक्ति के अनेक प्रकार के रोग जरा आदि दूर होकर के चिरायुष्य की प्राप्ति होती थी, बुद्धि शक्ति, मनस शक्ति, ये सब उसकी सुदृढ़ होती थी और व्यक्ति चिरायु को, लंबे आयु को प्राप्त होता था। यह तो केवल एक औषधि के विशेष में है। और जो अभी बहुत सारे जो भौतिक वस्तुओं का दधि सोम है, जल सोम है, दूध सोम है, घृत सोम है, सर्वाभि सौम्य औषध है। अंतिम एक ब्राह्मण में कह दिया कि सोम, जितने भी औषधियां सब सोम गुण संपन्न है। तो जिन औषधियों में सोम संबंधी गुण अधिक हैं, ऐसे तो सभी औषधि मात्रा किसी न किसी नामूलम औषधम अस्ति हम लोग कहते हैं। तो जिनमें अधिक सौम्य गुण पदार्थ हैं, उन सभी को हम लोग सोम कह सकते हैं। दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे मंत्र मिलते हैं, माने ये तो भौतिक लता औषधि विषय को हम लोग छोड़ते हैं। और मस्तिष्क में जो हमारा क्या उसको ग्रे मैटर बोलते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल आदि ने भी उसको दिव्य सोम आश्रित, द्युलोक में सोम था। तो जैसे हमारा ब्रह्मांड में द्युलोक है, अंतरिक्ष लोक है और पृथ्वी लोक है, शरीर में भी द्युलोक, हम मस्तिष्क को द्युलोक मानते हैं और हृदय को अंतरिक्ष लोक मानते हैं, नाभि से नीचे भाग को पृथ्वी लोक मानते हैं। तो जो मस्तिष्क में ग्रे मैटर है, उस ग्रे मैटर को ही सभी जो हमारे देवता हैं, देवता जो इंद्रियां हैं, दिव्य गुण संपन्न जो हमारी इंद्रियां हैं, उस सोम रस के पान करके सभी देवता, सभी इंद्रियां हमारा अपना अपना व्यापार करने में, अपने अपने कार्य करने में समर्थ होती हैं। ये तो, और जो असली सोम है शरीर का, तो उसको ओजात्मक जो सोम है, उस सोम को ही असली शरीर का जो भौतिक सोम है, उस भौतिक सोम के रूप में कहा गया है। सोम और गौ और सोम का क्या संबंध है, इसके विषय में भी बहुत सारे हम लोगों को मंत्र प्राप्त होते हैं। तो गौ में एक नाड़ी विशेष होता है जो कि सूर्य की रश्मि के माध्यम से सक्रिय होती है, और सोम के रूप में उनका जो दूध आदि होता है वह भी सोम गुण संपन्न होता है, इसलिए माना जाता है। आज तक संसार में अमृत नाम से जो पदार्थ वर्तमान उपलब्ध हैं, उसमें गाय का दूध सर्वोत्तम अमृत है, ऐसे हमारे आयुर्वेद के विद्वानों का। गाय भी जो देसी गाय हैं, कहीं आप क्रॉस ब्रीड की गाय का दूध मत पी लीजिएगा। क्रॉस ब्रीड गाय के दूध के विषय में तो इतना हम लोगों की यहाँ भ्रांति फैलाई गई है। कभी इसकी वास्तविकता जानने के लिए एक को आप लोगों को इंटरनेट में मिल जाएगा, देखिएगा उसको, डेविल इन मिल्क, पूरा रिसर्च करके प्रतिपादित किया गया है कि दूध में शैतान, कि जितने भी क्रॉस ब्रीड के गाय के दूध हैं, वो दूध नहीं आपके लिए, हमारे शरीर के लिए जहर का काम करता है। और आज जितने प्रकार की बीमारियां हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है और दुनिया भर की बीमारियां हो रहे हैं, ये हमारा विदेशी गायों का दूध और जो भी हम लोग जीएमपी खा रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, और ये कीटनाशक और ये सब चीजें, रासायनिक खाद इत्यादि, तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए हानिकारक है। तो इन सबको नहीं, देसी गाय का दूध अमृत के रूप में माना गया है। और सारांश रूप में इसको ये कह सकते हैं, ब्राह्मण आदि ग्रंथों में जिन भौतिक वस्तुओं को, दूध को, सोम को, जल को, घृत को, मधु को सोम कहा गया, इन सब का सेवन करके अपने शरीरस्थ जो सोम है, ओज है, शुक्र है, उसको संरक्षित करके हम लोग जब ऊर्ध्वरेता होकर के, ऊर्ध्वारोहण शुक्र का ओज का होता है, तब हम द्युलोक में आरोहण करते हैं और द्युलोक में आरोहण करके हम लोग उस सोम का पान करके अमृत तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। मैं इसी प्रसंग में जो स्वर्ग लोक से सोम आहरण की कथा है, आपके शतपथ ब्राह्मण में है और सारे ब्राह्मण ग्रंथों में है, पुराणों में भी उसका उपबृंहण किया गया है, बहुत सारी आख्यायिका हैं। तो उस आख्यायिका का सारभूत तत्व ये है कि दिव्य सोम आसित, द्युलोक में सोम था। उस द्युलोक में सोम को लाने के लिए पहले जगती छंद को, फिर उसके बाद त्रिष्टुप छंद को, ये सारे छंद को भेजा गया, लेकिन अंत में गायत्री छंद को भेजा गया। गायत्री छंद क्या है? तो गायत्री, जैसा कि हम जानते हैं, गायनात् त्रायते, जिसके गान करने से व्यक्ति, गायत्री तो छंद मात्र है लेकिन हम उसको वेद माता भी बोलते हैं। उस गायत्री की उपासना से स्वर्गलोक में
जो द्युलोक में सोम है, मस्तिष्क में, उस सोम का आहरण होता है और हम लोग शरीर उसका पान करके शरीर अमृतत्व को प्राप्त होता है। इससे न संबंधी जितना आख्यान है, और भौतिक दृष्टि से, आधिभौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से वहां गायत्री को अग्नि भी कहा गया है। नहीं, आधिदैविक दृष्टि से गायत्री को अग्नि भी कहा गया। कैसे? द्युलोक में जो सोम सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, उस द्युलोक स्थित सोम को अग्नि रूप गायत्री जब प्रखर उष्मा के रूप में ऊपर जाती है, तो वृष्टि आदि के रूप में, पर्जन्य आदि के रूप में सोम पर्जन्य आदि के माध्यम से पृथ्वी का पर उसका वर्षण होता है, और उससे अनेक प्रकार की जो सोमादि औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, उनकी उत्पत्ति होती है, और उसका सेवन करके हमारी जीवन यात्रा, हमारा जीवन चलता है। और उस जीवन यात्रा के लिए उस सोम की कितनी आवश्यकता, कितनी महत्ता हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। तो उपासना के माध्यम से हम अपनी शक्ति का ऊर्ध्वारोहण करके सारे उस शक्ति का, अपने दिव्य जो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि इत्यादि हैं, उनको पान कराएं, और उनको पान करा करके जो शक्ति प्राप्ति होगी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, ध्यानस्थ होकर के, समाधिस्थ होकर के जो दिव्य आनंद की प्राप्ति, जो दिव्य सोमरस का पान होगा, वह वस्तुतः सोमरस है। अपाम सोमम अमृता अभूम अगन्म ज्योतिरविदाम देवान, ये जो कहा गया है उसी को लक्ष्य करके कहा गया है। और जो मंत्र है कि सोमम मन्यते पविवान यत् संपिंशत्योषधिम, लोग कहते हैं कि मैंने सोम पीस करके पी लिया मैं सोमपान, वह वास्तविक सोम नहीं है। जो ब्रह्मज्ञानी लोग जिस सोमरस को पीते हैं वह असली सोम है। तो ब्रह्मज्ञानी लोग किस सोमरस का पालन करते हैं? अपने भक्ति में, समाधि में, आनंद अवस्था की जो प्राप्ति होती है, वह परम सोम है। और इसी को ही मदिन तमह, उसको ही लक्ष्य करके कहा गया है कि सोम सबसे ज्यादा आनंद देने वाला है, सबसे ज्यादा प्रसन्न करने वाला है। शराब पी करके कोई भी व्यक्ति आज तक मोक्ष को नहीं प्राप्त हुआ है, आनंद को नहीं प्राप्त हुआ है। क्षणिक उत्तेजना, क्षणिक वासना, उसके शरीर में उत्तेजना की वृद्धि तो हो जाती है, लेकिन शराब पी करके कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हुआ। ये तो भौतिक जो सोम का पक्ष हुआ। जहां तक अंतरिक्षस्थ सोम चंद्रमा का है, चंद्रमा को भी बहुत जगह सोम कहा गया है। और चंद्रमा का पुराणों में आप लोगों को मालूम है कि सारे देवता चंद्रमा सोम का पान करके एक एक कला में पान करते हैं, ऐसा आख्यान मिलता है हम लोगों को पुराणों में, और सभी देवता लोग आप्यायित होते हैं। तो चंद्रमा को सोम कहने का अभिप्राय जहां तक मैं समझ पाया हूं कि जितने भी पृथ्वी में औषधि वनस्पतियां हैं, उन सब में जो सोम तत्व आता है वो चंद्रमा के माध्यम से आता है। और गीता का श्लोक भी हम लोगों को याद आ रहा होगा, पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं सोम रूप हो करके वो सभी औषधियों का, चंद्रमा के रूप में सभी औषधियों का मैं पोषण करता हूँ, वृद्धि करता हूँ। ये अंतरिक्षस्थ सोम चंद्रमा के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। और चंद्रमा मन को आह्लादित करता है, चंद्रमा मन को प्रसन्न करता है। ये सब हम लोग अनुभव करते हैं कि पूर्णिमा के दिन, पूर्ण चंद्रमा के दिन कोई भी व्यक्ति बैठ जाए तो निश्चित रूप से उसका मनस्तत्व आह्लादित होगा। ऐसे तो मनस्तत्व की उत्पत्ति भी जो ऋग्वेद आदि है उसमें चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत, ये मंत्र पाठ करते हैं कि मनस्तत्व जो विराट मनस्तत्व है, परमात्मा के मनस्तत्व, विराट मनस्तत्व से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। और हम लोगों का जो व्यक्तिगत मनस्तत्व है वह भी चंद्रमा तत्व से निर्मित है। तो जो तत्व, जैसे हमारे परिवार का कोई व्यक्ति, माता पिता भाई बंधु मिल जाए तो हमको प्रसन्नता होती है, मन भी उस चंद्रमा की सौम्य तत्व से निर्मित है। तो चंद्रमा के दर्शन से हम लोगों का मन आह्लादित होता है, प्रसन्न होता है। और जो बड़े बड़े योगी लोग हैं जो केवल सूर्य के किरणों से या चंद्रमा के किरणों से भी अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा भी हमारे ग्रंथों में प्राप्त होता है, वर्णन प्राप्त होता है। कि अभी बेंगलुरु में एक हमारे परिचित मित्र हैं, वो बता रहे थे कि साधु हैं, कई महीनों तक उन्होंने भोजन आदि ग्रहण नहीं किया। क्या? समुद्र के किनारे जाकर के जहाँ तरंगों में सूर्य प्रतिबिंब हो रहा है उस सूर्य को देखते रहते हैं,
और शरीर की ऊर्जा केवल उन्हीं से मिलने भूख प्यास खत्म हो गए, जीवन में किसी प्रकार का शरीर या मन को कष्ट नहीं हुआ, तो साक्षात सूर्य के किरणों से, इसी प्रकार चंद्रमा के किरणों से भी लोग ऊर्जा ग्रहण करते हैं। आज भी ऐसे लोग जीवित हैं। एक मेरे ही बहुत निकट के मित्र हैं, ब्रह्मचारी सनत कुमार, बहुत बड़े विद्वान हैं, सारे ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, आरण्यक, व्याकरण आदि शास्त्र के विद्वान हैं, बड़े साधना में रहते हैं। उन्होंने भी केवल सूर्य पर त्राटक करके महीना भर बिना, लेकिन आप लोग शुरू मत कर दीजिएगा, बिना के आंखें खराब भी हो सकती हैं, तो उसके लिए एक विशेष साधना पद्धति है, उसके माध्यम से सूर्य से साक्षात शक्ति ग्रहण करके जीवन यापन किया जा सकता है। जैसे सूर्य से, चंद्रमा से भी साक्षात सोम का जो ऊर्जा है, सौम्य ऊर्जा है, उसको प्राप्त करके जीवन को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ये थोड़ा सा जो भौतिक सोम है और जो अंतरिक्षस्थ सोम है उसके बारे में थोड़ी सी मैंने चर्चा की। और जो सोम का जो आध्यात्मिक अर्थ है, सोम का आध्यात्मिक अर्थ सीधा सा अर्थ है कि जो परमात्मा, वेदों में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो जिस सोम से सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, अग्नि की उत्पत्ति हो रही है, द्युलोक की उत्पत्ति हो रही है, वह निश्चित रूप से किसी माने परमात्मा शक्ति को हम लोग सृष्टि का उत्पादयिता, सृष्टिकर्ता मानते हैं। तो निश्चित रूप से हमें परमात्मा, स्वामी दयानंद जी के भाष्य में बहुत स्थानों में अनेकत्र सीधा उन्होंने परमात्मा आदि अर्थ किया है। और भी स्वामी दयानंद के परंपरा के जो भाष्यकार हैं, स्वामी दयानंद ने कहीं भी कोई अर्थ अपने जबरदस्ती नहीं किया है। उन्होंने कहीं ना कहीं ब्राह्मण ग्रंथों में, सूत्रादि ग्रंथों में उसका प्रमाण देखा, उन प्रमाणों के आधार पर उन्होंने ये अर्थ किया है। इस पक्ष में इस पर शरीरात्मबल, विद्या योगाभ्यास, भक्ति, सुख, अध्ययन तथा परमात्मा जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य है, वो सोम के आध्यात्मिक पक्ष में ये अर्थ प्राप्त होते हैं। और जो द्युलोक में सोम है और द्युलोक का सोम का स्वरूप क्या हो सकता है, ये मुझे भी स्पष्ट नहीं है। मुझे भी स्पष्ट नहीं, मतलब कि इतना तो है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, वेद को समझने के लिए एक विज्ञाताश्रयवाद माने जाने हुए तथ्यों के आधार पर अज्ञात तथ्य को जानने का नाम है विज्ञाताश्रयवाद। जैसे कह रहे हैं कि सोम की उत्पत्ति कहाँ हुई, अग्नि से कहाँ की उत्पत्ति हुई, कह रहे हैं कि इनके जो सूक्ष्म परमाणु थे, अग्नि अजायत, इंद्राद इंद्रो अजायत, सोमात सोमो अजायत, तो सोम से सोम की उत्पत्ति, अग्नि से अग्नि की उत्पत्ति हो रही है। तो इन सब के उत्पत्ति के जो कारण हैं, सूक्ष्म कारण है, सूक्ष्म परमाणु है, सूक्ष्म जो त्रिगुणात्मक सत्वरजस तमस के परमाणु हैं, जो सौम्य गुण संपन्न हैं, उनको भी सोम कहा गया है। और द्युलोक में जो सोम का असली स्वरूप है, और उसी सोम की बात कर रहे हैं ये, उसी सोम से सारे सृष्टि की उत्पत्ति, अग्नि आदि की उत्पत्ति, चंद्रमा की उत्पत्ति नहीं, अग्नि की, वायु की, इंद्र की उत्पत्ति मान रहे हैं। तो ये उस द्युलोक माने सृष्टि उत्पत्ति कारक जो सूक्ष्म कण है, जो सूक्ष्म परमाणु है, वह द्युस्थानीय सोम है। उसके लिए बहुत सारे मंत्र हैं। जैसे इंद्रात्मा भी कह रहा था, इंद्राद इंद्र सोमात सोमो अग्निर अग्निर अजायत, ये सायण भाष्य में भी वही अर्थ किया है। तो द्युस्थानीय सोम का स्वरूप जो है वो वेद में जो मिलता है, उसके लिए पूर्वीय, प्रत्न, अग्रिय ये शब्द मिलते हैं। तो पूर्व, प्रत्न, अग्रिय, इस शब्द का अर्थ हम लोग सकते हैं कि सबसे जो पूर्व स्वरूप है, पूर्व रूप है, उसको हम लोग पूर्वीय कहेंगे। प्रत्न जो सबसे पुराना रूप है, उसको हम लोग प्रत्न कहेंगे। अग्रिय भी उसी को कहेंगे कि जो सबसे पहले विद्यमान था। तो ये जो पूर्वीय, प्रत्न, अग्रिय ये सब रूप हैं, ये दिव्य वै सोम विष्ठित विष्टंभो दिवो धरुण पृथिव्या दिवो धरतासी इत्यादि मंत्र प्राप्त होते हैं।
कि जो सोम है दिवो विष्टंभ उत्तम, द्युलोक का उत्तम विष्टंभ, विष्टंभ स्तंभ कारक, द्युलोक को रोकने वाला जो सोम है वो सोम वह है जो द्युलोक जिसके सहारे टिका हुआ है। ये मंत्र बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा है, देखिए पृथ्वी विष्टंभो दिवो धरुण पृथिव्या, वो केवल द्युलोक का ही विष्टंभ नहीं है, पृथिव्यः धरुणः पृथिव्यः धारकः वर्तते। और वही अगले नवम मंडल में कहा गया है कि दिवो धर्तासि, दिवो धर्तासि द्युलोक का धारण करने वाला हो। तो द्युलोक का धारण करने वाला कौन? कोई पौधा, कोई वनस्पति तो हो ही नहीं सकता, ये दूध पय सोम तो हो ही नहीं सकते। तो निश्चित रूप से वो धर्ता कारण क्या है हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन जिन आधारों पर, जिन आश्रय पर द्युलोक पृथ्वी आदि टिका हुआ है, पृथ्वी आदि टिकी हुई हैं, स्थित हैं, उनको भी वेद में स्पष्ट रूप से सोम कहा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और मंत्र में आपके सामने ऋग्वेद कहे रख रहा हूँ, जनयन रोचना दिवो जनयन अपसु सूर्यम वशानो या अपो हरि, कि वो सूर्य को भी जन्म दे रहा है, अपसु सूर्यम सूर्य को जन्म दे रहा है, द्युलोक में जल को उत्पन्न कर रहा है। तो ये सब निश्चित रूप से सृष्टि उत्पादक जो प्रमुख कारण हैं उनको भी सोम रूप से कहा गया है। आप लोगों ने रघुवंश में चंद्रमा की उत्पत्ति का जो प्रसंग है वो श्लोक कौन से सर का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अथ नयन समुत्थम ज्योतिरद्रेर इवाद्यो, कि अत्रि ऋषि के अत्रि ऋषि है नयन जलेभ्य सोम चंद्रमश उत्पत्ति जाता। ये सुनने में तो माने किसी व्यक्ति की आंख के नेत्र जल से चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? तो निश्चित रूप से वहां जो ऋषि शब्द हैं, ऋषि शब्द किसी ऐतिहासिक व्यक्ति विशेष के नहीं है, ये निश्चित ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। तो जो सृष्टि उत्पादक प्राण तत्व विशेष हैं उनका नाम भी वेदों में ऋषि है। ये ऋषि रहस्य करके अपने एक बहुत बड़े विद्वान हैं डॉक्टर भगवत विद्यालंकार जी, तो उन्होंने बहुत सब प्रमाण ये प्रतिपादित किया है। तो ऋषि वेद में जो नाम है किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के नहीं है, नहीं तो फिर तो वेद के आपका नित्य हो गए। ऐतिहासिक माने भारद्वाज, अत्रि, इन सब का, वशिष्ठ इत्यादि, जमदग्नि इत्यादि ऋषियों का वर्णन यदि हम ऐतिहासिक ऋषियों को मान लेंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। वेद को समझने में सबसे बड़ी समस्या है वैदिक साहित्य को नाम साम्यता। नाम साम्यता, जैसे उस नाम के जमदग्नि नाम के ऋषि विशेष हुए, भारद्वाज के नाम के ऋषि विशेष हुए, आज भी इतिहास में इस नाम के बहुत सारे व्यक्ति हैं, आज भी बहुत सारे व्यक्तियों का नाम जमदग्नि है, भारद्वाज है। मेरा नाम सोम है, सोमोस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा सोमदेव मेरा नाम है। तो मुझे ऋग्वेद में ढूंढने लग जाए तो मुसीबत हो जाएगी। संस्कृत वैदिक वाङ्मय में विशेषतः एक ही शब्द के अनेकार्थ हैं, और अनेकार्थ शब्द को हम लोग जब एक लाइन में खड़ा कर देते हैं, एक लाइन में जुड़ लेते हैं, तब सारी समस्या होती है। तो हम उन प्रसंगों में ब्राह्मण आदि ग्रंथ को, पुराण आदि को देख करके अन्य आदि प्रमाणों के आधार पर उन शब्दों के उन अर्थों को निश्चय करना पड़ेगा। जैसे वो आपका मंत्र प्रसिद्ध है वेद का, सप्त ऋषयः प्रतिहिता शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम अप्रमादम। 7 ऋषि आपके शरीर में ही बैठा दिए। तो कौन से ऋषि शरीर में बैठे गए? तो चक्षुर्वै जमदग्नि ऋषि है, चक्षु जो है जमदग्नि ऋषि है, और कोई ऋषि है, आंख किसी भारद्वाज ऋषि है, कर्ण कोई ऋषि है। इस तरह से जो पूरे ब्रह्मांड में है उस पूरे ब्रह्मांड की साम्यता इस पिंड में भी कर दिया, पिंडांड में भी। और सौभाग्य की बात है कि इन तथ्यों को समझाने के लिए ऐतिहासिक पुरुषों के भी उन गुण विशिष्ट व्यक्तियों का भी नाम उस नाम का कर दिया। तो जब हम लोग ये सब तीनों के पार्थक्य को, इतिहास के पार्थक्य को, जो सृष्टि उत्पत्ति करता प्राणादि शक्ति हैं उनकी पृथकता को, वर्तमान जो उस नाम वाले व्यक्ति हैं उन नामों को पृथक से नहीं देख पाएंगे, तो निश्चित रूप से वेद का हनन होगा। वेद तल प्रसुदाद वेद जो कहा गया है, तो निश्चित रूप से हम वेद के सही अर्थ नहीं कर पाएंगे। और अंत में एक बात और मैं ध्यान देना चाहूंगा कि जो सोमयाग वाला पक्ष है
जिसका यौ सोमेन यजते सौ स्वर्गम लोकम गच्छति, जो सोम याग करता है वो स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। तो इतना निश्चित है। सोमयाग का सत्व ब्राह्मण का तृतीय कांड कभी अलग से फिर इस विषय में चर्चा करेंगे। सोमयाग के तृतीय कांड में जो सोम सवन करके इंद्र आदि देवताओं के विधिवत अनेक कर्मकांड से आहुति प्रदान करने से स्वर्ग सुख विशेष आदि की प्राप्ति होती है, उस यज्ञ की महत्ता तो है ही, साथ में उस सोम याग के माध्यम से एक सोम सोम का एक अर्थ हमारे आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वानों हैं, पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार, स्वनामधन्य पूज्य स्वामी समर्पणानंद सरस्वती जी, उनका और अर्थ करते हैं सोम का अर्थ स्नातक। किसी गुरुकुल से, किसी शिक्षणालय से वेदादि शास्त्र ज्ञान विज्ञान से संपन्न जो स्नातक है वह सोम है। और ऐसे ही कल्पना मात्र नहीं है, बहुत सारे वर्णन ऐसे हैं, जैसे एक मंत्र में आपको सुना रहा हूं, उसी नवम कांड का है, नवम मंडल का है। सुविज्ञानम चिकितुषे जनाय सच्चा सच्च वचसि पस्पृधाते, सुविज्ञानम चिकितुषे जनाय सच्चा सच्च वचसि पस्पृधाते, तयोर्यत् सत्यम यथरद्रिजीयः सोमो अवति हन्त्यासत्। बहुत सरल मंत्र देखिए, सुविज्ञानम चिकितुषे जनाय सच्चा सच्च वचसि पस्पृधाते, सत्य वचन असत्य वचन, सत्य ज्ञान असत्य वचन, जहां पर पस्पृधाते परस्परम श्रद्धाम कुर्वते, जहां परस्पर उनका विवाद होता है, सत्य क्या असत्य क्या, इसका निर्णय क्या होगा। तो कहते हैं कि तयोर्यत् सत्यम, उन दोनों में से जो सत्य है, यतरद् ऋजीयः, माने सत्य असत्ययोः यद् ज्ञानम ऋजीयः सरलतम साधुतम वर्तते सोमो अवति, सोमः अवति अवति रक्षति, हन्त्या असत् यत् असत् ज्ञानम वर्तते तद हन्ति। एक जब वनस्पति विशेष मानोगे आप सोमलता को, एक कोई वनस्पति औषधि विशेष सत्य असत्य ज्ञान का निर्णय करके सत्य की रक्षा कैसे कर सकता है? संभव है? नहीं है। तो निश्चित रूप से जब यहाँ सोम का अर्थ जो एक गुरुकुल से पूरा जो यजुर्वेद का जो सोमयाग वाला प्रकरण है, तो निश्चित रूप से सोमयाग के साथ साथ किस तरह से योग्य छात्र योग्य विद्वानों का निर्माण किया जाता है वह इसकी ओर संकेत करता है। देखिए जितने भी कर्मकांड के यज्ञ हैं ये एक प्रतीक रूप में है और उनके प्रत्यायनीय अर्थ, प्रत्यायन किसी प्रतीकेन गम्यमान अर्थ प्रत्यायनीय, तो ये एक अलग बहुत लंबा विषय हो जाएगा, फिर भी मैं संक्षेप से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस बात को पुष्ट करने के लिए दो चार प्रमाण में दे रहा हूँ। देखो सोम को कहा गया कवि क्रतुः कवि मना, सोम जो है कवि मन वाला है, कवि क्रतुः कवि क्रांत प्रज्ञा वाला है। तो एक लता विशेष ठीक है, मान लिया हम लोग लक्षणा व्यंजना से ये मान लेते हैं कि सोमरस पीने से कवित्व भावना जागृत हो जाती है, व्यक्ति का मन क्रांतदर्शी हो जाता है, लक्षणा व्यंजना से अर्थ कर लें तो ये अर्थ भी संगत हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं, अथर्ववेद का 14वां कांड हमारे यहाँ दाम्पत्य सूक्त के नाम से जाना जाता है, उसको एक बार आप जरूर देखें, सभी विद्यार्थी सभी शोध छात्र देखेंगे कि दाम्पत्य सूक्त क्या सोम और सूर्य का विवाह का वर्णन है, सोम और सूर्य का विवाह का वर्णन है वहां पर। तो कहा गया सोमो बधूयुर अभवत का उभावस्विना वरा, बधुयु शब्द आप लोग व्याकरण के छात्र हैं, बधुम याति प्राप्नोति थी बधुयु माने वह दूल्हा, सोम जो है दूल्हा बन रहा है, बधु को प्राप्त करने के लिए दुल्हन को कन्याम प्राप्तुम वर रूपेण यगच्छति स स्नातक बधूयु उच्यते, बधुम याति बधुम प्राप्नोति। तो कोई लता कोई वनस्पति कोई औषधि घृत आदि कैसे बधूयु हो सकता है? तो निश्चित रूप से हम लोगों को सोम का आर्थिक स्नातक भी करना पड़ेगा कि जो समग्र ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर के ज्ञानामृत का निष्पादन करता है और अपने आप को अमृत बनाया तथा संसार को अमृतत्व का ज्ञान का प्रदान करता है। सोम का जो वर्णन मिला है कि सोम कहाँ रहता है, स्वर्गलोक में सोम कहाँ था? स्वर्गलोक में दिव्य वही सोम आसित,
द्युलोक में स्वर्ग था। और स्वर्गलोक किसको कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथकार स्पष्ट कहते हैं, यत्र वै पशून् संजपयन्ति स स्वर्गलोकः, जहाँ पशुओं को संजान युक्त करते हैं। मध्यकालीन सभी व्याख्याकारों ने संजपयंती का अर्थ लीला पशु को मार करके अग्नि में आहुति डालते हैं, और वो तो इतना एक विभत्स रूप है। एक संजपन, अवदान, इन शब्दों के गलत अर्थ करके हम लोगों ने यज्ञ में पशु बलि देना शुरू कर दिया, जिसका कोई औचित्य नहीं है। यज्ञ का नाम एक अध्वर, क्या नाम है? अध्वर। अध्वर हिंसायाम ध्वरी कौटिल्य गतो, तो नध्वर अध्वर ध्वरति, यास्क लिखते हैं, यास्क निरुक्त ग्रंथ प्रतिपादयति, ध्वरति हिंसा कर्म तत्प्रतिषेधः अध्वरः। यत्र हिंसा न भवति, यत्र कौटिल्यादि कर्म न भवति, तन्नाम अध्वरः यज्ञो वा। तो अध्वरः जब कह रहे हैं, तमध्वरे विश्वजिदीक्षित शाम निशेष विश्राणित कोश जातम, आप रघुवंश को याद कीजिए। तो अध्वर में तो कोई हिंसा हो ही नहीं सकती। तो किस प्रसंग में कह रहा था? यत्र वे पशुन संजपयन्ति, जहां पर पशुओं को संजान युक्त करते हैं वह स्वर्गलोक है। तो जो गुरुकुल शिक्षणालय है वह वस्तुतः स्वर्गलोक है, जहां पर पशु से मानव का निर्माण हो रहा है। आप कहेंगे पशु का मानव निर्माण कैसे होता है? होता है, आपका वेद मंत्र है, नाना रूपा पशवो जायन्ते मातुरस्य उपस्थात। वेद मंत्र भी बोल रहा हूं मैं। माँ के उपस्थ से, गर्भ से नाना रूपा पशवो जायन्ते, अनेक रूप के पशु उत्पन्न होते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथों में जो गोवत्स है वो वैश्य बालक के रूप में है, जो अश्व है वो क्षत्रिय बालक के रूप में है, और जो अजा है ब्राह्मण बालक के रूप में वहां पर प्रतिपादित है। हम लोगों ने इन निर्जीव जीवों की हत्या करके यज्ञ में आहुति देनी शुरू कर दी। इसके लिए और एक प्रबल प्रमाण में ध्यान रखिए, यजुर्वेद का मंत्र सोमयाग के प्रसंग में हमारे महीधर उब्बट आदि ने उसका कैसा गलत विनियोग किया है कि वो क्या है, मेढ्रंते सुंधामी, पायुस्ते सुंधामी, अक्षिस्ते सुंधामी, और अंत में कहा गया कि चरित्रांस्ते सुंधामी। उब्बट महीधर आदि इसकी व्याख्या करते हैं, बकरी के आंख काट करके यज्ञ में आहुति दे दो, कान काट के आहुति दे दो, मेढ्र उसका जो मूत्रंदे आदि वो काट के यज्ञ में आहुति दे दो। और अंत में कह रहे हैं, और ये यजमान जो आचार्य पत्नी ये मंत्र बोल रही है, और अंत में कहता है चरित्रांस्ते सुंधामी। मैं तुम्हारे, कितनी हास्यास्पद बात है कि मैं तुम्हारे चरित्र को शुद्ध करता हूँ। किसी पशु को मार करके उसके आंख काट दी, कान काट दिया, नाक काट दिया, पैर काट के आहुति दे दी, अंग अंग की आहुति दी, कि उसके चरित्र को क्या शुद्ध करोगे आप? इसका बहुत स्पष्ट अर्थ है कि जब एक शिशु पशु रूप में विविध दोष युक्त होकर के अज्ञानता के पशु कहते हैं हम लोग, पश्यति थी पशु, जिसमें सामान्य भोग आदि सामर्थ्य, दर्शन आदि सामर्थ्य, वह पशुत्व है। उस पशुत्व को आचार्य पत्नी दूर करते हैं, और उसके चक्षुर आदि इंद्रियों का स्पर्श करके, कि जो तुम्हारे आंखों में, कान आदि इंद्रियों में जो दोष है, आचार्य पत्नी तुम्हारे उन सब दोष को, कुसंस्कारों को दूर करके तुम्हारे चरित्र को शुद्ध करेंगे। मंत्र का उचितार्थ निहितार्थ यही है पूरे सोमयाग के प्रकरण में। और एक बहुत प्रबल प्रमाण देखिए, आपको इस स्पष्ट हो जाएगी। सोम स्वर्गलोक में कहाँ है? दीक्षा तपसो वा कुश्यो सोम आहित। सोम कहाँ पर रखा है? दीक्षा और तप रूपी कुशी, कुशी बोलते हैं उसको, गमला, संस्कृत भाषा है, गमला कुशी तुच्यते। तो सोम जो है कहाँ पर? दीक्षा और तप रूपी गमले में स्थित है। कोई सोम वनस्पति, लता विशेष, औषधि विशेष दीक्षा और तप के गमले में कैसे हो सकता है? दीक्षा अपने कर्तव्य निष्ठा, व्रत दीक्षा यदि व्रत नाम सुपठितम, व्रत अपने जो ब्रह्मचर्य व्रत है, अहिंसा व्रत है, उस व्रत रूपी दीक्षा में जो ब्रह्मचार्य स्थित है। और तप तो जानते हैं हम लोग, द्वंद्व सहनम तपः, कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शीत उष्ण ग्रीष्म वर्षादि का परवाह न करके ब्रह्म प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन दीक्षा और तप रूपी ब्रह्मचर्य दीक्षा, ब्रह्मचर्य तप में जो ब्रह्मचारी स्थित है, वो दीक्षा तपसोर्वा कुस्यो सोमाहित, दीक्षा और तप रूपी गमले में सोम निहित है। इत्यादि अनेक सतसह प्रमाण जिससे सिद्ध होता है कि सोमयाग के माध्यम से भी वह एक उत्तम सोम रूपी स्नातक का निर्माण कैसे हो सकता है। इस विषय को
स्वामी समर्पणानंद जी कृत शतपथ ब्राह्मण का भाष्य है तृतीय कांड, वो आप लोग अवश्य पढ़ेंगे, एक एक पंक्ति के। सोमयाग में विनियुक्त जो भी कर्मकांड हैं उन कर्मकांडों का एक एक पंक्ति का बहुत सुंदर व्याख्या की, और वही व्याख्या ही वहां पर सुसंगत प्रतीत होती है। नहीं तो एक ड्रामा नाटक मात्र सा प्रतीत होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दो उसी सोम का। जब यज्ञ के लिए सोम को लाया जाता है, उस सोम को शकट में रख करके विधिवत उसका ऐसे सगट बैलगाड़ी, तो उस बैलगाड़ी में रख करके उसका ऐसे ही स्वागत किया जाता है कि जैसे किसी विद्वान का स्वागत करते हैं। तो भाई तुम सोम लता को ला रहे हो, ठीक है, वही दिव्य औषधि है, लेकिन एक विद्वान अतिथि के समान उसका स्वागत करने का क्या उद्देश्य हो सकता है? कि यही कि उस प्रतीक के माध्यम से किसी बड़े प्रत्यायनीय अर्थ को प्रतीत कर रहे हैं। तो पूरे घटनाक्रम इसी तरह से, इसी प्रकार से यदि हमारा राजसूय यज्ञ है, राजसूय यज्ञ के माध्यम से पूरी राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था कैसे चलाई जा सकती है, इसका वर्णन है। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए अग्निहोत्र जो है, हम लोग अग्निहोत्र, नित्य अग्निहोत्र करते हैं। अग्निहोत्र में जो मंत्र हैं, वो अग्निहोत्र प्रारंभ होता है, पहले सायंकाल प्रारंभ होता है और प्रातः सूर्योदय में वो पूर्ण होता है। तो इसलिए वो जो मंत्र है, सूर्य ज्योति ज्योति नहीं, अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, अग्निर्वर्च ज्योतिर्वर्च, और अंत में सूर्य ज्योति ज्योति, ये सूर्य होता है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? अग्निहोत्र प्रथम जो श्रोत याग है वह सृष्टि उत्पत्ति को प्रदर्शित कर रहा है। इस संबंध में आप लोग एक पुस्तक जरूर पढ़ेंगे। मैं जितने भी शोध छात्र हैं, जितने भी उपाध्याय हैं, उनसे निवेदन करूंगा इस पुस्तक को मंगा कर अपनी लाइब्रेरी में रखें। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उनकी पुस्तक है अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत श्रोत यागों का संक्षिप्त परिचय। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक, अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत श्रोत यागों का संक्षिप्त परिचय, इस पुस्तक में बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने सारे विषय को खोला है। मैं बहुत थोड़े से शब्द में आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे हम लोग बच्चों को भूगोल सिखाने के लिए ग्लोब, मानचित्र आदि दिखा करके हम लोगों को भूगोल, पृथ्वी इत्यादि का ज्ञान कराने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही ऋषियों ने यज्ञों के माध्यम से जो भी आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि सामाजिक जितने भी विद्याएं हैं, उन सभी विद्याओं को यज्ञों के माध्यम से इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। एक छोटा सा और उदाहरण, ये बात मेरी स्पष्ट हो जाएगी। ज्यादा समय तो नहीं हो रहा है अनंत जी? नहीं सर, कोई बात नहीं सर। हाँ सर। जैसे मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, जैसे वेदी रचना है, वेदी हम लोग बना, तब तो हम लोग सब बड़े मॉडर्न हो गए, तांबे का, लोहे का यज्ञ कुंड रखा, हवन कर देते हैं, छुट्टी हो गई। श्रौत यज्ञ में जो वेदी निर्माण विधि है बहुत बहुत तो अद्भुत है। अद्भुत क्या है? माने सृष्टि उत्पत्ति विद्या कैसे हो उसका रहस्य समझाएगा। आप देखिए, ध्यान से सुने एक एक चीज को। सबसे पहले जल प्रोक्षण होता है, ठीक है, जल प्रोक्षण आज भी हम लोग करते हैं। उसमें जल प्रोक्षण के बाद उसमें वराह विखनित मृत्तिका प्रसार्यते। वराह जंगली सुअर, जंगली सुअर बोरस के द्वारा जो खोदी हुई मिट्टी है उसको फैलाई जाती है। उसके ऊपर बल्मिक, बल्मिक जानते हैं ना, बामी, बामी की मिट्टी उसमें हम लोग फैलाते हैं। उसके बाद फिर इष्टिका चयन आज से कुंड का निर्माण किया जाता है। उसके बाद फिर उसमें अंत में एक सोने का टुकड़ा रखा जाता है। सोने का टुकड़ा रखने के बाद फिर उसमें चारों तरफ कुश प्रच्छादित किया जाता है, कुशा रखा जाता है। फिर एक पद्मपत्र रखा जाता है। तब अरणि मंथन करके अग्नि स्थापित की जाती है। अच्छा, केवल आग जला करके ओम अग्ने स्वाहा करके आहुति दे के केवल पर्यावरण शुद्ध ही करना था तो ठीक था। लोहे के यज्ञ कुंड में आपने लकड़ी डाली, आग जलाई, स्वाहा कर दिया, यज्ञ कुंड हो गया। इतना बड़ा प्रपंच की क्या आवश्यकता थी? ये हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई उसकी कहानी बताती है कि अयं यज्ञो भुवनस्य नाभि, यजुर्वेद का मंत्र, इयं वेदी परो अंतः पृथिव्या। ये जो वेदी है, यज्ञ वेदी है, पृथिव्या परो अंतः परम उत्कृष्ट भाग विद्यते। तो
इस पृथ्वी की उत्पत्ति की कहानी देखिए, सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले सारा जलमय था। आप एव सर्वम सलिलम सर्वमा इदम, महाराज मनु कहते हैं कि आप एव ससर्जादो, पहले जल सृष्टि थी, इसलिए जल प्रोक्षण किया जाता है। जल से पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है, मिट्टी का, पृथ्वी से मतलब मृत्तिका का जो उत्पत्ति हुई है, वह बराह विखनित मृत्यु, बराह, आपको थोड़ा पुराण की तरफ जाना पड़ेगा। बराह विष्णु अवतार बराह रूप धारण करके समुद्र से पृथ्वी का उद्धार, ये कहानी आप लोगों को मालूम है। तो वराह कौन है? वराह विष्णु का रूप है। विष्णु कौन है? जो द्वादश आदित्य हैं, 12 महाआदित्य सबसे प्रखर तेज वाला, उस 12 आदित्य में सबसे प्रखर तेज वाला सूर्य का नाम विष्णु है। और वराह, वहां वायु विशेष का नाम भी ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णन है। वायु विशेष उस समय की सृष्टि उत्पत्ति के समय उस प्राणवायु विशेष के संघर्षण से, वराह विष्णु के प्रखर तेज से, उस जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। जैसे दूध को संघर्ष, दूध को गर्म करने से मलाई आदि जम करके पृथ्वी भाग होता है, इस तरह से उसका वर्णन है। तो वराह विखनित मृत्यु भी गिलगिली होती है, जहां गिली मिट्टी होती है वराह प्राय वहां खोदता है, तो वराह विखनित मृत्यु। उसके बाद बल्मिक की मिट्टी भुरभुरी सी होती है, तो थोड़ा और कठोर हुआ तो बल्मिक मृत्यु का रूप लिया। उसके बाद सिकता, सिकता रेत, सैंड, वो फैलाए जाते हैं, फिर उसका वह रूप होता है। उसके बाद प्रस्तर सबसे अंत में रूप होता है, इष्टिका के रूप में, प्रस्तर के रूप में चयन किया जाता है। अंतिम जो पृथ्वी का सारभूत तत्व सोना है, पृथ्वी सारभूत तत्व सोना है, तो लौह अयस्क के रूप में सोना का एक टुकड़ा रखा जाता है। फिर उसके बाद औषधि वनस्पतियां उत्पन्न हुई हैं, इसलिए कुशा दर्भ, उसमें चारों तरफ दर्भ कुशा का प्रसारण किया जाता है। और पद्मपत्र रखने का अभिप्राय है, हम लोग जानते हैं पृथ्वी में 3 भाग जल है, 1 भाग स्थल है। तो जल में इस पृथ्वी का ऐसा ही रूप है जैसे जल में लोलायमान कमल दल का, कमल पत्र सेव स्थिति, तस्मात् अन्ते कमल पत्रम स्थाप्यते, पुनः अरणिमंथनेन अग्नि उत्पाद्यते, आदौ अग्निरुत्पत्ति अरणमंथनादेव संभूता इति कृत्वा अग्निस्थापनम क्रियते। तो ये वेदी रचना समग्र पृथ्वी की, पूरी पृथ्वी की आदि में उत्पत्ति कैसे हुई, इस घटना को द्योतित कराने के लिए ऋषियों ने वेदी के माध्यम से यह ज्ञान अग्निचयन से पूर्व हमें स्थापित किया। और ब्राह्मण ग्रंथों में, पुराण आदियों में इसके संकेत मिलते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को संपादित किया था। ये तो वेदी की बात होगी। वेदी का नाम वेदी क्यों है, इसके भी ब्राह्मण ग्रंथों में असुरों को हरा करके देवताओं ने इस वेदी के माध्यम से, वेदनाद वेदी, जो वेद का अर्थ है विद त्रिलाभे विद सत्याम विद ज्ञाने विद विचारणे, तो इस वेदी के माध्यम से देवताओं ने समग्र पृथ्वी पर अधिकार किया, इसलिए इस वेदी का नाम वेदी है। प्रत्येक शब्द तो इसी प्रकार किसी न किसी बहुत अद्भुत, माने सृष्टि विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, शासन विज्ञान, अध्यापन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि अनेक अर्थ को प्रत्यायित करते हैं। और साथ ही जो कर्मकांड हो रहे हैं, उन कर्मकांड के जो मुख्य लाभ है, सुखादि की प्राप्ति, देवताओं के हवि अर्पण से, हवि अर्पण से जो मीमांसा कथित जो अपना अपूर्व आदि की प्राप्ति हो ही रही है। तो इस यज्ञ आदि के माध्यम से, इसी प्रकार सोमयाग के माध्यम से जो समग्र एक उत्तम से उत्तम विद्वानों का निर्माण कैसे किया जाता है, यह भी बात प्रासंगिक आनुषंगिक रूपेण सोमयाग के माध्यम से बताया गया है। सोम का एक व्यापक स्वरूप का हल्का सा परिचय देने का मैंने आपको प्रयास किया। सारांश रूप में यह है कि जो भौतिक सोमलता आदि औषधि हैं, दूध हैं, दधी हैं, घृत है, पय है, इनका सेवन करके हम ऊर्ध्वरेता बने, ऊर्ध्व शक्तिमान बने, ब्रह्मचर्य आदि रक्षा करके, जिससे हमारे इस शरीर के जो देवता हैं, इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि और सशक्त हों, और उस जो गायत्री आदि साधना करके हम लोग ऊर्ध्वरेता होकर के उस परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का साक्षात्कार समाधि में जाकर के उस परम आनंद अमृत तत्व को लाभ करें। तभी जो कहा गया सोम एवं ब्राह्मणो विदो न तदस्नाति पार्थिव, ब्रह्मविद्ता लोग जिस असली सोम को जानते हैं उसको सामान्य पार्थिव व्यक्ति नहीं जान सकता।
हम ब्रह्म की साधना, ब्रह्म की उपासना करके ही असली सोम को प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारे जो भौतिक सोम आदि हैं, इस सोम जो आध्यात्मिक सोम रस है, समाधि सुख की आनंद की प्राप्ति, उस दिव्य आनंद की प्राप्ति में ये सहायक हैं, दीर्घ जीवन देने में समर्थ हैं। और ये जो कहा गया सोम कोई नर्सिला पदार्थ है, कोई क्या अपना जो सहस्त्र बलसा इत्यादि करके जो उसको एक कुकुरमुत्ता क्या बोलते हैं उसको, शब्द में ध्यान आ रहा है अभी, डिवाइन मशरूम, ये इस सर्वथा ये एक अज्ञान वाले पक्ष हैं। हमें आज आवश्यकता है कि वेद, वेदांग, पुराण, महाभारत, रामायण, सारे ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ करके सोम का जो एक दिव्य स्वरूप है, उस दिव्य स्वरूप को जानने की आज आवश्यकता है। द्युलोकस्थ सोम क्या है, अभी तक हमें कोई भी विद्वान इस चीज को ढंग से स्पष्ट नहीं कर पाया। जो वेद में वर्णन मिलते हैं, उन वर्णन के आधार पर यही कहा जा सकता है कि जो सृष्टिकारक, सृष्टि के उत्पादक जो प्राण शक्ति इत्यादि थे, जिससे समग्र सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, वह भी सोम है। और अंत में सबसे बड़े सोम जो परमात्मा है, वह तो सोम है ही। उनकी आराधना, उनकी साधना, उनकी उपासना करके हम अपने जीवन को पूर्णता, अमृतत्व प्रदान करें। आप लोगों ने मुझे इतना सुंदर अवसर दिया, वेद की चर्चा आप लोगों के सम्मुख जितना मैं जानता था कर पाया। मेरा ये परम सौभाग्य है कि बंग भूमि, भारतीय संस्कृति, वेद, इनके प्रचार प्रसार के सदा अग्रणी रहा है। जब तक संस्कृत वेद सुरक्षित हैं, तभी तक हमारी संस्कृति भी सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। ये हम सबको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। आज ऐसी मानसिकता, दुर्मानसिकता फैलाई जा रही कि वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति को किस तरह से नीचा दिखाया जाए, इसके लिए हजारों तरह के प्रयास, सांस्कृतिक आक्रमण हो रहे हैं। हम सभी संस्कृतज्ञों का ये परम कर्तव्य बनता है कि वेद का, संस्कृत का, हमारे जो वैदिक संस्कृति सभ्यता का जो उज्जवल पक्ष है, इसको आज हम सबके सामने सिद्ध करके स्थापित करें। और हमारी संस्कृति, वेद ज्ञान किसी देश, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। परमात्मा की वाणियां शृण्वन्त विश्व अमृतस्य पुत्र, हे अमृत पुत्र सुनो, विश्व के मानव मात्र के लिए कल्याणकारिणी वाणी है। सा संस्कृति प्रथमा विश्ववारा, विश्वेर वर्णीय अस्माकं षष्ठतमा संस्कृति वर्तते, अस्या संस्कृति प्रचार प्रसार सर्वत्र भवतो। वेद भगवान की जय। आप सबकी बहुत बहुत, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विशेष करके सम्मान्य अनंत मुखोपाध्याय जी का मैं पुनः आप सबको करबद्ध प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। असंख्य धन्यवाद सर। आज के सत्र में बहुत ही सुंदर रूप से आज आप हम सभी को दिशा दिखाएं शोभ के विषय में। रिसर्च के पक्ष से मैं भूय भूय आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। अभी अंत में प्रश्नोत्तरिका का पर्व रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं आज के सत्र के अंतिम में मीना कुमारी महाशया को थोड़ा सा आज के सत्र के विषय में कुछ वक्तव्य रखने के लिए कहूंगा। मैम, आप कुछ वक्तव्य लिखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तरिका का छोटा सा पत्र लिखेंगे। एक बार सभी को मेरा नमस्कार। सोम के विषय में आज हमारे स्पीकर महोदय, ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर श्यामदेव शतांशु सर ने बहुत ही विस्तार से हमारे सामने बहुत सी बातें बताई। और ये मैम, साउंड में कुछ दिक्कतें हो रही हैं, थोड़ा सा डिवाइस का साउंड थोड़ा सा बढ़ा के। हाँ, थैंक यू मैम। आप जा रही हैं साहब? हाँ मैम, ठीक है मैम, ओके मैम। ठीक है। हाँ मैम। और मैम, आवाज नहीं आ रही है, शायद कुछ समस्या हो रही है उसमें। क्या आ रही आवाज है? हाँ, आवाज आ रही है मैम। मैंने मोबाइल जो है मैम, डिवाइस का साउंड थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, उससे शायद आवाज और अच्छी आएगी। अच्छा, साउंड बढ़ा दी। हाँ हाँ, अब ठीक है मैम, अब ठीक है। ठीक है। हाँ मैम। ये सोम के बारे में बहुत ही जानकारी प्राप्त
मैम साउंड में थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी हो रही है मैम। वो जो माने आपका जो हेडफोन है मैम, वो थोड़ा सा स्पीकर का एरिया थोड़ा सा सामने रखिए। हाँ अब सुना पड़ रहा हाँ हाँ, ठीक है। है? हाँ मैम, ठीक है ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो ऋग्वेद का संपूर्ण नवमंडल है वो सोम को समर्पित है। सोम में देवत्व की कल्पना करके उनकी स्तुति की गई है विभिन्न ऋचाओं। उसके अतिरिक्त भी और ऋचाओं, मंडल के कुछ ऋचाओं भी इसके स्तुति की गई है। और ऋग्वेद के ऋचाओं में सोमलता को पीसकर जो सोच निकाला जाए तो उसकी पूरी प्रक्रिया का वर्णन है। उसमें सोमलता के जिस भाग को पीसकर सोमरस निकाला जाता है उसको ऋचाओं में अंश कहा गया है। और डंठल को छोड़कर संपूर्ण सोमलता को अंधस कहा गया है। उसके अलावे इसका उद्गम जो है वो पर्वतों पर माना गया है, मुख्यतः सोम पर्वत पर। उसमें भी इसका बहुत विशेष संबंध है मुंजवत पर्वत से। और ऋग्वेद की ऋचाओं में इसको विभिन्न नाम से पुकारा गया है, मद, मधु, इंदु, द्रपसप आदि। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि देवताओं का अन्य सोम चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा के वार को सोमवार कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में भी कहा जाता है कि चंद्रमा देवताओं का अन्य सोम है। उसी तरह छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है कि चंद्रमा ही अन्य सोम है। ये जो सोम रस है इसका रंग लाल होता है, या हरे रंग का भी होता है, भूरे रंग का भी होता है और पीले रंग का होता है, पीतवर्ण जिसको हम लोग कहते हैं। इसका आवास परम व्योम को माना गया है। और इसका जो संबंध है वो इंद्र और अग्नि से विशेष रूप से जोड़ा गया है। इंद्र इसका संबंध, घनिष्ठ संबंध इसलिए बताया गया है कि इंद्र का यह सर्वोत्तम पेय पदार्थ है। जो इंद्र हैं उन्होंने वृत्र नामक असुर का वध किया था। और ऐसा कहा जाता है कि वृत्र नामक राक्षस की हत्या करने से पहले उन्होंने सोमरस का ही पान किया था, इसलिए सोमरस को वृत्राहन भी कहा जाता है। उसके बाद अच्छा, ये सबसे पहले हम लोगों को बार बार इस बात को समझ लेना चाहिए, याद रखना चाहिए कि सोम और सूरा एकदम एक दूसरे के विपरीत हैं। सोम एक बहुत ही लाभदायक और पौष्टिकारक पेय पदार्थ है, जबकि सूरा मदिरा है वो हमेशा ही हानिकारक है। इसका जो ये बहुत ही गुणकारी है। जैसे कि जो सोम रस का पान करता है उसको बल, बुद्धि, स्वास्थ्य, ऊर्जा में वृद्धि होती है। यह राक्षसों का हंता माना जाता है, इसलिए इसको रक्षोहन कहा जाता है। और यह शत्रुओं से भी रक्षा करने वाला है। सोम रस बहुत ही पौष्टिकारक पेय पदार्थ है, इसलिए इसे सर्वोत्तम औषधि कहा जाता है। यह स्वास्थ्यवर्धक है और इसे वनस्पतियों का अधिपति यानी शासक कहा जाता है। तो यह सोम रस जो है वो बहुत ही गुणकारी है, इसीलिए इसके बारे में हमें और भी बहुत जानने की, बार बार इसके बारे में शोधकर्ताओं को शोध करने की आवश्यकता है। इसमें बहुत से स्कोप हैं शोध करने के लिए, नई नई जानकारियां मिलेगी, बहुत सी जानकारियां हैं, आगे भी जानकारियां मिलेगी। हम संस्कृत के
पढ़ने वाले पढ़ाने वाले इसके बारे में कुछ जानते भी हैं, लोग शायद कुछ कम जानते हैं, उनको बताने का मौका मिलेगा, लोग इसके गुणों से परिचित होंगे और इसके बारे में और भी बहुत सी जानकारियां मिलेंगी, जिससे इसके गुणों को हम और भी ज्यादा जान पाएंगे और लोग भी इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इतना ही कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मैम। अभी उपस्थित शोधार्थी वृंद जो भी यहाँ पे समागत है, सभी को सोमदेव शतांशु सर से या पार्थप्रतिम दास सर से या मीना मैम से कुछ प्रश्न हैं आज के सत्र के विषय में, तो आप लोग अवश्य प्रश्न पूछ सकते हैं। কারুর যদি হিন্দি বা সংস্কৃত বলতে অসুবিধে হয় তোমরা অবশ্যই সেটি আমাকে বলতে পারো, আমি ট্রান্সলেট করে দেবো সোমদেব স্যারকে, কোনো অসুবিধা নেই। हाँ, जो बहुत सारे जिज्ञासा बच्चों के हो सकते हैं, आप लोग पूछें, जो जानेंगे बताने का प्रयास करें। शायद अभी किसी का कोई जिज्ञासा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सेशन दो- जो है रिकॉर्डेड रहेगा। दो ही स्थिति में ऐसी स्थिति होती है या तो सर्वे संपूर्ण जानिनः सन्ति वा विषयः कस्यापि बुद्धौ न आगतः, का स्थिति वर्तते। ये बालक कुछ बोलना चाहते हैं, बोलो बेटा। अस्तु तर्हि इदानीं महोदय इदानीं समाप्तिं प्रति गच्छेम वयम् इति। अस्तु, सोनम्। अस्तु अस्तु अस्तु। सभी को सर्च टू रिसर्च के पक्ष से मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, सभी को सभी शोधार्थी वृंद जो हैं सभी को समझ में आएगा, इसी कारण मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। आज के इस सत्र में, सर्च टू रिसर्च के आज के इस सत्र में हम सबके साथ उपस्थित थे श्रद्धेय अध्यापक प्रोफेसर सोमदेव शतांशु कुलपति, गुरुकुल कांगड़ी शम विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड के। आपको सर्च टू रिसर्च के पक्ष से हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आज हमारे सत्र में आने के लिए और इतना सुंदर एक विषय आज हम सब के सामने प्रस्तुत करने के लिए। और साथ ही साथ हम सब के साथ उपस्थित थे आज के प्रधान अतिथि, प्रमुख अतिथि के रूप में श्रद्धेय अध्यापक पार्थप्रतिम दास স্যার। স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সার্চ টু রিসার্চে আসার জন্য এবং আমাদের এই সমগ্র শোধার্থী বৃন্দ যারা যারা আমরা এই গবেষকরা একসাথে মিলে বিভিন্ন প্রান্তের আমরা এই প্রয়াসটা করছি, সেই জন্য সবসময় আপনাকে এইরকম বিভিন্ন বিষয়ে আমরা আপনাকে পাশে পাবো আগামী দিনেও আশা করি। অত্যন্ত মানে একটা আনন্দঘন সুন্দর মুহূর্ত যে আজকে আপনি আমাদের সঙ্গে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং যতজন এখানে প্রত্যেকেই উপস্থিত আছে, মানে আমরা যারা বেঙ্গল থেকে এখানে উপস্থিত আছি প্রত্যেকেই জানি যে স্যার অ্যাবসলায় অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বছরের সেমিনার থাকে, এছাড়াও অ্যাপসটার বিভিন্ন রকম আমরা কাজকর্ম দেখেছি করোনা ইত্যাদি সময় দুর্গত পীড়িতদের পাশে থাকার জন্য। তো সব সময় আপনার বাণী, আপনার কার্যপ্রণালী আমাদের সকলের কাছে আগামী দিনের প্রেরণা হোক অবশ্যই। আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আজকে আমাদের সঙ্গে আসার জন্য, আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য। স্যার শুরুতে আপনি যে বক্তব্য রেখেছেন সোম বিষয়ে এবং সোম বিষয়ে আমরা পাশ্চাত্যে কিরকম কিরকম আলোচনা পেয়ে থাকি ইত্যাদি এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা কি কি আলোচনা করেছেন এই বিষয়ে অসংখ্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই স্যার। और हम सबके साथ उपस्थित थी श्रद्धेय अध्यापिका डॉक्टर मीना कुमारी महाशया, SSLNT वुमेन्स कॉलेज धनबाद के संस्कृत विभाग की अध्यापिका, विनोद बिहारी महातो कोयलांचल विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई, और जो भी यहाँ पे और सब उपस्थित थे श्रद्धेय अध्यापक अध्यापिका। जैसे मैं देखा हूँ कि गीता अग्रवाल मैम जुड़ी हुई थी, पूर्णिया विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की अध्यापिका, बुल्टी दास महाशय जुड़ी हुई साहित्य विभाग नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी की अध्यापिका, ऐसे और भी बंगाल के विभिन्न प्रांत से अध्यापक अध्यापिकाएं जुड़े हैं, झारखंड और बिहार और उत्तराखंड से सभी को, और जितने सारे शोध छात्र छात्राएं आज उपस्थित हुए हैं सभी को, सभी गवेषक गवेषिकाएं, सर्च टू रिसर्च के गवेषक गवेषिकाओं के पक्ष से धन्यवाद। और सब ऐसे ही हम लोग नए नए चीजों के साथ
शोध करते रहे। संस्कृत में ऐसे बहुत सारे चीजों के साथ हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, तो नए नए चीजें जो है आगामी दिनों में हम लोग इस जगत को, इस विश्व को, इस पृथ्वी को हम लोग दे सकते हैं। जैसे आज मैं शुरू में प्रारंभिक वक्तृता में देखा हूं कि प्रोफेसर पार्थप्रतिम दास सर पाश्चात्य पंडित, पाश्चात्य विद्वान जो हैं वो सब सोम रस के विषय में, सोम के विषय में क्या सोचते हैं, इन सारे विषयों को लेकर चर्चा। सोमदेव शतांशु सर आज सोम के आध्यात्मिक, भौतिक, रासायनिक इत्यादि विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा किए हैं, जिन सब के ऊपर आगामी दिनों में हम लोग नए नए रिसर्च कर सकते हैं। मीना मैम एकदम रासायनिक स्तर पे सोम का जो व्याख्यान है वो अंतिम में बहुत है। और मैम आज एक संगीत भी प्रस्तुत की है। बहुत सारी जगह में एक्चुअली आज जो है बहुत माने वज्रपात हो रहे हैं, वृष्टि हो रहे हैं बंगाल झारखंड के कई प्रांतों में। शायद इसी कारण थोड़ा सा इंटरनेट का कुछ समस्याएं हुई होंगी, तो मैं इसी कारण थोड़ा सा सभी के सामने क्षमा मांग रहा हूँ। कुछ ऐसे कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गए होंगे तो, और सभी को धन्यवाद। अंत में शांति के माध्यम से हम लोग सत्र की समाप्ति की ओर जाते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम तत्सत्। सभी को नमस्कार। तो सर हम यहीं पे रखते हैं। सोमदेव सर, पार्थो सर, তাহলে আমরা শেষ করছি স্যার।